નમસ્કાર, વંદન. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી અને કચ્છ યુનિવર્સિટી, ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી ના પ્રણામ સર. સાહેબ જાડેજા સાહેબ જોઈન થઈ ગયા? જી સર. નો સર, ક્યારનો જોઈન હવે પહેલા થઈ ગયા સાહેબ. અરે સર, અમે આપની વેટ કરતા હતા. આપનો પ્રોગ્રામ અમને એમ તો કેમ ચાલુ નથી કરતા, અમને એમ આશ્ચર્ય થતું હતું. આપનો પ્રોગ્રામ હતો એટલે અમે રાહ જોતા હતા. હા સર, કઈ વાંધો નહીં, જો આપની અનુમતિ હોય તો ચાલુ કરીએ સાહેબ, પ્લીઝ સાહેબ. આભાર ખૂબ ખૂબ કુલપતિશ્રીઓનો. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાત સરકાર દ્વારા રમતગમત ના ક્ષેત્રને આગવા સ્તરે લઈ જવા માટે યોજેલું એક બહુ જ સારું પ્રયોજન એટલે આ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી. યુનિવર્સિટીને 2019 માં એક નવું સુકાન મળ્યું પછી યુનિવર્સિટી એક નવા વિચારધારા સાથે ગુજરાતની ખૂણે ખૂણે પહોંચવાની ભગીરથ કાર્યને હાથમાં લીધું. શારીરિક શિક્ષણ અને રમતગમત આ બે વ્યક્તિગત રસના વિષયોને ધ્યાને ન લેતા શારીરિક શિક્ષણ અને રમતગમત વ્યક્તિના જીવનનો એક પર્યાય બને તેના એક ઓબ્જેક્ટિવ સાથે ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબનો એક વિચાર કે જુદી જુદી યુનિવર્સિટી સાથે કનેક્ટ થઈ અને સાંપ્રત સમયની જરૂરિયાત મુજબ જેટલા પણ સ્પોર્ટ્સ અને ફિઝિકલ એજ્યુકેશન સાથે જોડાયેલા પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ છે તે બધાને અત્યારની ટેકનોલોજી અને હાલની જરૂરિયાત મુજબ ટ્રેન કરીએ, જેથી ટ્રેન ધ ટ્રેનર્સના પ્રોગ્રામ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ માહિતી, આ ઇન્ફોર્મેશન પહોંચે અને એક ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી જે અત્યારે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી છે તેમના વિચારને કે ગુજરાતનો એક વ્યક્તિ એ રમત ગમતને સાથે લઈને ચાલે તેને સાર્થક કરીએ. આ જ નિયમમાં ક્યાંક કરંટ મુખ્યમંત્રી શ્રી પણ માનનીય કુલપતિ શ્રીના એક સારા એવા માર્ગદર્શક બન્યા અને કુલપતિ શ્રી એમની નેમ પૂરી કરવા માંગે છે સ્પોર્ટ્સ એજ્યુકેશન ફોર ઓલ. તે અંતર્ગત ઘણી યુનિવર્સિટી સાથે એમઓયુ કર્યા. તેમાંનો આ એક એમઓયુ અંતર્ગત થતો 7મો એફડીપી 6 ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ આ યુનિવર્સિટીએ અલગ અલગ યુનિવર્સિટી તથા ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી શારીરિક શિક્ષણ અને સ્પોર્ટ્સ, ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સ માટે કર્યા છે. આ વાત સાથે નોલેજ ઇમ્પાર્ટેશનની કેટલી જરૂરિયાત અને કેટલા ઓબ્જેક્ટિવ સાથે આ યુનિવર્સિટી આગળ વધી રહી છે તેનો એક નાનકડો એવો અંશ તો યુનિવર્સિટી બીજા ઘણા પ્રયોજનો કરી રહી છે જે આગળ ધીરે ધીરે કદાચ સર્વે લોકો જોશે અને માણશે અને ગણતા. આ વાત સાથે હું યુનિવર્સિટીના અમારા ટીચિંગ ફેટર્નિટીના અમારા સિનિયર મોસ્ટ એસોસિએટ પ્રોફેસર શ્રી ડોક્ટર સુધીર કુમાર શર્મા સાહેબને આજના આ પ્રસંગ માટે વેલકમ એડ્રેસ માટે હું આમંત્રું છું. ડોક્ટર સુધીર કુમાર શર્મા સર. Good afternoon, all the dignitaries and participants. Dear friends, the objective of this online 7 days faculty development program is to enable the participants to understand and explore the new trends in physical education and sports and enable them in capacity building as per the need of the time. In this online faculty development program on reinvigoration of physical education and sports from 11th to 17th June 2021 for physical education and sports personals of Krantiguru Shyamji Krishna Verma University, Bhuj. I, Sudhir Kumar Sharma, Associate Professor, Department of Physical Education and Director IQAC, Swarnim Gujarat Sports University. On behalf of Department of Physical Education, Swarnim Gujarat Sports University welcomes to dynamic, humble and nimble President of this inaugural session, Professor Arjun Singh Rana ji, Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar. Welcome, sir. I also welcome today's chief guest, Professor Jayaraj Singh ji, Jadeja ji, Honorable Vice Chancellor, Krantiguru Shyamji Krishna Verma University, Bhuj, in this inaugural session. Welcome, sir.
I welcome Dr. G.M. Bhutani ji, Registrar, Kranti Guru Shyamji Krishna Verma, University Bhuj. Welcome, sir. I welcome Shri M.P. Pandya ji, Registrar, Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar, in this inaugural session. I welcome all the experts from Swarnim Gujarat Sports University and other universities of Gujarat State who will enlighten the participants of this faculty development program. Henry Ford once said, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. Last not at the least, I welcome to all the participants from Krishna Guru Shyamji Krishna Verma, University Bhuj, in this 7 days faculty program, because due to their overwhelming and enthusiastic support, we are able to conduct this program. And I welcome one and all in the last. Welcome to everyone. Please. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રોફેસર ડોક્ટર સુધીર કુમાર શર્મા સાહેબ. યુનિવર્સિટી દ્વારા ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ અંતર્ગત જ્યારે અમારા માનનીય કુલપતિશ્રીને સરકારશ્રી દ્વારા જવાબદારી સોંપવામાં આવી ત્યારે કરેલા ઘણા બધા નોટેબલ કાર્યોમાંનું એક કાર્ય કે જેને બહુ બધા જુદા જુદા સ્ટેટ્સમાંથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો એ છે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટેની એક માર્ગદર્શક પુસ્તિકા બહાર પાડી, જે પહેલા તો માત્ર ગુજરાતી ભાષામાં જ બહાર પાડવામાં આવી હતી, પણ જુદા જુદા સ્ટેટ્સની ડિમાન્ડ અને દિલ્હીથી પણ રિક્વેસ્ટ આવવાને કારણે એને હિન્દી અને ઇંગ્લિશ આ બંને વિષયોમાં પણ ટ્રાન્સલેટ કરી અને પબ્લિશ કરવામાં આવી છે. આ એક નાનકડો એવો અચીવમેન્ટ જે યુનિવર્સિટીનો છે. આ સાથે હું ક્રાંતિ ગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર શ્રી ભૂટાણી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજે જોડાયેલા જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે તે બધાને ઉત્સાહવર્ધન તેમની વાણી દ્વારા કરે. નમસ્કાર. આજના ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ કાર્યક્રમમાં અધ્યક્ષશ્રી કચ્છ યુનિવર્સિટીને એકેડેમિક અને વહીવટી ક્ષેત્રે અગ્રેસર કરનાર અમારા કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર જયરાજસિંહ જાડેજા સાહેબ, આજના આ એફડીપી કાર્યક્રમના પ્રણેતા અને ગુજરાત રમતગમત દ્વારા વેગવંતુ કરનાર સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર અનિરુદ્ધસિંહ રાણા સાહેબ તથા સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલસચિવ શ્રી પંડ્યા સાહેબ, આજે જેમના થકી 7 દિવસનો આ એફડીપી કાર્યક્રમ જે આયોજન થયેલું છે તેના કોઓર્ડિનેટર શ્રી ડૉક્ટર સુધીર શર્મા સાહેબ તથા એફડીપીમાં જોડાયેલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપક મિત્રો અને સર્વેને આવકારતા આનંદની લાગણી અનુભવું છું. સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુનિવર્સિટી તથા કચ્છ યુનિવર્સિટી સાથે 29/10/20ના MOU થયા છે, જેના અનુસંધાને ફિટ ઇન્ડિયા થીમ આધારિત શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપકોમાં નવી શક્તિનો સંચાર થાય તે હેતુથી આ એફડીપીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. COVID-19ના કારણે સમાજ જીવનની જે પ્રણાલી છે એમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. એના માટે આ એફડીપી મહત્વનો બની રહેશે. કચ્છ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના 2000માં થઈ છે. ત્યારથી રમતગમત ક્ષેત્રે દર વર્ષે વિવિધ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં આંતર કોલેજ લેવલની સ્પર્ધાઓ, વેસ્ટ ઝોનની સ્પર્ધાઓમાં પણ અમારી યુનિવર્સિટી ભાગ લે છે. 2004માં સૌ પ્રથમવાર વેસ્ટ ઝોનમાં ક્રિકેટમાં સતત 5 વિજય મેળવ્યા હતા. નાની એવી યુનિવર્સિટી દ્વારા નેશનલ લેવલે પણ સારું એવું કામ કરેલું જોવા મળે છે. એવી રીતે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્ટર યુનિવર્સિટી એથ્લેટિક્સમાં ગોળા ફેંકમાં પણ 5મો ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. કબડ્ડીની ટીમ વેસ્ટ ઝોનમાં 4થું સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું હતું. તેમાં બેસ્ટ ખેલાડીનો એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયો હતો. હેન્ડબોલની મહિલા ટીમ 2016માં 2જું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એવી જ રીતે 2019માં 3જું સ્થાન
પ્રાપ્ત કરેલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ પણ એક વિદ્યાર્થીને કર્યું. વેઇટ લિફ્ટિંગ, પાવર લિફ્ટિંગ, લોન ટેનિસ વગેરે રમતોમાં નોંધપાત્ર દેખાવ અમારી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ કર્યો છે. અમારી યુનિવર્સિટી નાની હોવા છતાં પણ અમારે ત્યાં શારીરિક શિક્ષણના 6 અધ્યાપકોએ પીએચડીની ડિગ્રી પણ પ્રાપ્ત કરી છે. ત્યારે આ કોરોના મહામારીમાં પણ અમારા શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપકોએ કોરોના વોરિયર્સ તરીકે પણ સેવા આપી છે. ટૂંકમાં એ ઉપરાંત 2019માં યુએઈમાં યોજાયેલ સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક વોલીબોલના હેડ કોચ તરીકે પણ અમારા અધ્યાપકોએ ફરજ બજાવી છે અને ભારતને સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કરાયો. તો આમ આપ દ્વારા આ સરસ જ બંને યુનિવર્સિટી દ્વારા એફડીપીનું આયોજન કરી બંને યુનિવર્સિટીના આયોજકોને હું અભિનંદન આપું છું. આ કાર્યક્રમ વ્યક્તિગત ન રહેતા આ કાર્યક્રમનો લાભ સમાજના અન્ય લોકોને પણ મળે એવું આયોજન કરવામાં આવે, જેથી કરીને જે આપણા વડાપ્રધાન જે એમનું જે થીમ છે એ ફિટ ઇન્ડિયા, એ આવનારા સમયમાં આજે જે કંઈ અહીંયા નોલેજ અધ્યાપકોને મળે એ સમાજ સુધી જાય એવી હું અપીલ કરું છું. અને આવનારા સમયમાં આ બંને યુનિવર્સિટી મળીને વધુને વધુ આ ફિટ ઇન્ડિયાનો જે કાર્યક્રમ છે એ આગળ વધારે અને ભારતના લોકોને રમતગમત ક્ષેત્રે નવો સંચાર પેદા થાય એ પ્રકારના કાર્યક્રમો આગળ ધપાવે એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે. આપ સર્વેનો આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય રજિસ્ટ્રાર શ્રી. સર્વે જેટલા પણ સહભાગીઓ જોડાયેલા છે એ બધા જ સહભાગીઓને વિનંતી કરીશ કે એટલીસ્ટ એવર રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ કે આ યુનિવર્સિટીએ રમતગમત ક્ષેત્રે ખૂબ જ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. સાહેબ, નાની યુનિવર્સિટી આપના દ્વારા પ્રોનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું, પણ આપની સિદ્ધિઓ ચોક્કસ એવું જણાવે છે કે રમતગમત અને શારીરિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે આપે ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે અને આ પ્રકારે એફડીપી માં જોઈન થવું અને એક કોમન ગોલ સાથે આગળ વધવું એ તત્પરતા બતાવે છે શારીરિક શિક્ષણ અને સ્પોર્ટ્સને આગળ વધારવાની. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી કંઈક એવી ફોર્ચ્યુનેટ ટાઈમમાંથી અત્યારે નીકળી રહી છે કે 2019માં સરકારશ્રી દ્વારા આ યુનિવર્સિટીનું સુકાન ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબને સોંપવામાં આવ્યું. ખાસ ક્યારે એવું કહી શકાય કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન સેફ હેન્ડમાં છે તો એનું એક અદ્ભુત ઉદાહરણ સર સાહેબ 2 ડિકેડ સુધી એક્ટિવ સ્પોર્ટ્સમાં બીસીસીઆઈ અને આઈસીસીમાં કાર્યરત રહ્યા પછી પોતે પોતાની એકેડેમિક કારકિર્દીને પણ એટલી જ દીપાવી ડબલ ડોક્ટરેટ સાથે આ પોઝિશન પર માત્ર પોઝિશન એન્જોય કરવા નહીં પરંતુ રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના સ્તરે રમતગમત અને શારીરિક શિક્ષણમાં શું આપી શકાય, શું નવું કરી શકાય અને કેવી રીતે આગળ વધી શકાય એના સતત ચિંતનશીલ વિચારો સાથે આ જગ્યાને શોભાવી છે. હું રિક્વેસ્ટ કરીશ અમારા કુલપતિ મહોદય સાહેબને કે સર આપના ઉદ્બોધન માટે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબ. નમસ્કાર, પ્રણામ, વંદનમ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી અને ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી ના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ આ ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત આદરણીય વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર પ્રોફેસર જયરાજસિંહજી જાડેજા સાહેબને હું વંદન કરું છું. રજિસ્ટ્રાર સાહેબને પણ હું પ્રણામ કરું છું. અત્રે ઉપસ્થિત મારા વડીલ એવા સહભાગી ડોક્ટર વિપુલ મોદીજીને પણ પ્રણામ કરું છું. ઉપરાંત ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સના તજજ્ઞો સમગ્ર કચ્છની સંલગ્ન કોલેજીસમાંથી જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ બધાને હું વંદન કરું છું અને
ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આજે કચ્છની અંદર કચ્છ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા જેટલા ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના પ્રોફેસર્સ અને સ્ટુડન્ટ્સ છે આજે બહોળી સંખ્યામાં આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા. હું એપ્રિશિએટ કરું છું અમારા ડોક્ટર સુધીર કુમાર શર્મા સાહેબને, ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટના હી ઇઝ હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ પ્રોફેસર. અમારા અંકુર સૈનીજી, રવિન્દ્રસિંહ રાજપુરોહિતજી, हमारा डॉक्टर कुणाल देसाई जी, डॉक्टर यजवेंद्र सिंह जेठवा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी, मारी समग्र टीचिंग टीम કે જે મને કંધે સે કંધા મિલાવી અને ટીચિંગ ની અંદર શૈક્ષણિક કાર્યમાં નવી શિક્ષણ નીતિ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી અને વી આર ધ પાયોનિયર્સ, વી આર ધ બિગિનર્સ, વી આર ધ ફાઉન્ડર્સ યુનિવર્સિટી in the field of sports in India, those who are going to implement this national new education policy from grassroots level to top level colleges. આ ઉપરાંત મારો એડમિન સ્ટાફ માનનીય શ્રી રજિસ્ટ્રાર શ્રી વિજેશભાઈ પંડ્યા સાહેબ, અમારા સીઓઈ કે જેને ખૂબ જ મહેનત કરી અને આજે આ બધું પ્લેટફોર્મ નિયમિત રીતે અમને પૂરું પાડ્યું છે, બધાની સાથે કોર્ડિનેશન કર્યું છે. डॉक्टर निसर्ग पाठक जी, हमारा असिस्टेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष रावल जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हमारा डॉक्टर कमल मोड जी અને અમારી સમગ્ર ટીમ હિમાંશુ ત્રિવેદી जी, પાલારા સાહેબ, એ બધાએ એક નક્કી કર્યું, અમે લોકો એક મીટિંગ કરી, એક નક્કી કર્યું કે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સના ક્ષેત્રમાં ગુજરાત રાજ્યના 33 જિલ્લા અને 252 તાલુકાઓમાં કેવી રીતે પહોંચે. પરમ શ્રદ્ધેય નરેન્દ્ર મોદીજીનું જે સ્વપ્ન હતું કે સ્પોર્ટ્સ એજ્યુકેશન ફોર ઓલ ગુજરાતની અંદર એક સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી હોવી જોઈએ, જેનું જવાબદારી મને 2 વર્ષ પહેલા આ યુનિવર્સિટીમાં મળી. અમે લોકો એક મીટિંગ કરી કે આ યુનિવર્સિટીને આપણે ગ્રાસરૂટ લેવલ સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી, વિદ્યાર્થીઓ, ખેલાડીઓ આ યુનિવર્સિટીનો લાભ કેવી રીતે લે, જેથી કરીને આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓને ચારિત્રવાન, બલવાન અને રાષ્ટ્રવાદી કેવી રીતે બનાવી શકીએ. એ સંકલ્પના સાથેની એ મીટિંગમાં એની ફલશ્રુતિ સ્વરૂપે અમે દરેક યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર શ્રીને પત્ર લખી અને એક એમઓયુ કરવા સાથે જોઈન્ટ એમઓયુ કરી અને સાથે શૈક્ષણિક કાર્ય, સ્પોર્ટ્સનું કાર્ય કરવા માટેનું એક એમઓયુ અમે સાઇન કર્યું. આ ઉપરાંત અમોને એક મીટિંગ રાજ્ય કક્ષા લેવલે રાજ્ય સરકાર તરફથી આપણા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબની અધ્યક્ષતામાં જ્યારે એજ્યુકેશન માટેની મળી ત્યારે એમને સ્ટડી ઇન ગુજરાતની વાત મૂકી હતી. તો એ સમયે અમોએ ડિસાઈડ કર્યું કે એવી જ રીતે જેમ એજ્યુકેશન ફેકલ્ટીમાં સ્ટડી ઇન ગુજરાતની વાત છે, તો ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોર્ટ્સ સ્ટડી ઇન ગુજરાત આપણી સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીમાં કેમ શક્ય ન બને. તો એ સંકલ્પનાને પણ સાકાર કરવા માટે આ યુનિવર્સિટીએ ગુજરાત રાજ્યની બહાર હમણાં ગત મહિને અમે લોકોએ યુનિવર્સિટી ઓફ કાશ્મીરની અંદર કાશ્મીરમાં અને યુનિવર્સિટી ઓફ જમ્મુમાં આગામી મહિનામાં થઈ રહ્યું છે એક એમઓયુ સાઇન કર્યું અને 145 રાજ્ય કક્ષાના કાશ્મીરના અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાના સ્પોર્ટ્સ પર્સનોએ આપણી યુનિવર્સિટીમાં સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લીધું. તો એ બતાવે છે કે કાશ્મીરના લોકોને પણ પથ્થરો નથી જોતા, બંદૂકો નથી જોતી, તેઓને સ્પોર્ટ્સના ઇક્વિપમેન્ટ્સ જોઈ છે અને એનું પૂરું કરવા માટેની જિમ્મેદારી, સ્પોર્ટ્સનું પ્લેટફોર્મ પૂરું કરવાની જિમ્મેદારી આપણા કેન્દ્ર સરકારે ઉપાડી છે. તો એ કેન્દ્ર સરકારની જિમ્મેદારી છે, એની અંદર સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાત રાજ્ય કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે. તો એવા જે ભટકેલા યુવાનો હોય કે જેની અંદર ટેલેન્ટ હોય અને એમને સ્પોર્ટ્સમાં એજ્યુકેશન લેવું હોય તો એમના માટેના દરવાજાઓ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીએ ખોલ્યા, ગુજરાત રાજ્ય સરકારે ખોલ્યા અને 145 આપણી પાસે નેશનલ પ્લેયરો જુદી જુદી રમતોના આ વર્ષે એડમિશનમાં રજીસ્ટર્ડ છે. એવી જ રીતે કચ્છ યુનિવર્સિટી સાથે આપણે એમઓયુ કર્યું, 6 મહિના પહેલા એમઓયુ કર્યું. આપણે તો ઓફલાઈન પ્રોગ્રામ, એક્ચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ ચલાવવાના હતા, પણ કોરોનાની આ મહામારી આવી. કોરોના અને આતંકવાદ જ્યારે હું આપની પાસે આવ્યો કચ્છમાં ત્યારે પણ મેં અમારી વાતને દોહરાવી હતી, ત્યારે બીજી લહેર આવી નહોતી.
ત્યારે પણ મેં આપને કીધું હતું કે કોરોના અને આતંકવાદ જેવી મહામારીઓ કોઈ પણ ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ, આબાલ, વૃદ્ધ કોઈને ઓળખતી નથી. એ ખાલી મોત આપે છે. તો એની સામે ટકવા માટે, એનો મુકાબલો કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? કોરોના અને આતંકવાદ, ક્રોસ બોર્ડર ટેરરિઝમ ની અંદર એક વસ્તુ સામ્ય છે, તે ખાલી મોત આપે છે, સંહાર કરે છે. તો એનો સામનો કરવા માટે આપણે શરીરમાં તાકાત હોવી જરૂરી છે. આપણી પાસે ઇમ્યુનિટી, આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ, આપણી બોડીની ડેવલપ કરવી જરૂરી છે. આપણે ફિઝિકલી ફિટ, મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એ ક્યારે થઈ શકે કે પરમ આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજીએ જ્યારે આપણને એક સંકલ્પના 29 ઓગસ્ટ 2019 માં આપી કે જે ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ નું એક આપણને સ્વપ્ન આપ્યું, અને એને આપણે જન આંદોલન તરીકે, જન જન આંદોલન ચલાવવાનું, ઘર ઘર સુધી ચલાવવાનું બીડું ગુજરાત સરકાર શ્રીએ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર તરીકે એ જવાબદારી અમોને સોંપી. અમે આખી ટીમ ભેગી કરી 33 જિલ્લા, 252 તાલુકા ગુજરાતના છે ત્યાં સુધી પહોંચી ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના કાર્યક્રમો આજ દિન સુધી ચલાવી રહ્યા. પરિણામે કોરોના સામેની મહામારીમાં લડવા માટેની ફિઝિકલ ફિટનેસની આપણી ઇમ્યુનિટી વધી અને વધારવાની છે. આ વસ્તુને આપણે સતત ચાલુ રાખવાની છે. ફિઝિકલ ફિટનેસ, મેન્ટલ ટફનેસ, મેન્ટલ સ્ટ્રોંગ થવા માટે આપણે યોગા, પ્રાણાયામ, જે નિતરભાઈએ વાત કરી કે અમે બુકલેટ બહાર પાડી છે, પુસ્તિકા, કે કોવિડ-19 સામે આત્મરક્ષણ કેવી રીતે કરવું, સાત્વિક આહાર કેવી રીતે લેવો, આયુષ મંત્રાલયનું પાલન કેવી રીતે કરવું, વેક્સિનેશનમાં કેવી રીતે જોડાવું. માત્ર આપણે જોડાઈને જ નીકળી જવાનું નથી, જવાબદારી પૂર્ણ કરવાની નથી. આપણી જિમ્મેદારી આપણી આજુબાજુના, આપણા મિત્રોના, સગાવાલાને ઓળખાણ પાયા કરીને પણ જેટલા લોકોને જોડવાનું છે. સ્પોર્ટ્સનું કામ જોડવાનું કામ છે. આપણા બધા અલગ અલગ વાડામાંથી આવીએ છીએ, અલગ અલગ ધર્મ, જાતિમાંથી આવીએ છીએ, અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાંથી, અલગ અલગ કોલેજીસમાંથી આવીએ છીએ, પણ આપણે બધા કાર્ય તો એક જ કરીએ છીએ, સ્પોર્ટ્સ. our common language is sports. We have to speak a common language, that is sports, sports and sports. આ માધ્યમ દ્વારા આ હેતુને પ્લેટફોર્મ બનાવી અને ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ અમે આપના સમક્ષ લઈને આવ્યા. અને હું માનનીય શ્રી જાડેજા સાહેબનો ખૂબ આભાર માનીશ, રજિસ્ટ્રાર સાહેબનો, કચ્છ યુનિવર્સિટીનો આભાર માનીશ કે તેમને સહર્ષ અમારી લાગણી અને માંગણી જે હતી એ સ્વીકારી લીધી અને ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના કચ્છ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા તમામ પ્રાધ્યાપકો, તમામ સ્ટુડન્ટ્સને, તમામ પ્લેયર્સને, સ્પોર્ટ્સમેનને જોડી દીધા. હવે નવી એજ્યુકેશન પોલિસીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના જુદા જુદા ટોપિક્સ પણ આપણને આમાં યુઝફુલ થશે. આ નવી એજ્યુકેશન પોલિસીની અંદર એક તો ટીચર્સની વાત છે, શિક્ષકોની. તો શિક્ષકો આપણે કેવા જોઈએ? ક્વોલિફાઈડ ટીચરોની જરૂર છે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોર્ટ્સમાં, કે જેના દ્વારા આપણે ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ ચલાવવાનું છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓને આપણે ફરીથી વાત દોહરાવીશ કે ચારિત્રવાન, બલવાન અને રાષ્ટ્રવાદી બનાવવાના છે. અને આ જ આવનારી પેઢી, નવી પેઢી એક નયા ભારતનું નિર્માણ કરશે અને એ નયા ભારતના માધ્યમ દ્વારા જ આવનારા વર્ષોની અંદર આપણે એક અખંડ ભારતનું પણ નિર્માણ કરવાનું છે. આપણે આપણી જડને, આપણી જે ફાઉન્ડેશન છે, આપણું જે કલ્ચર, આપણી સંસ્કૃતિ છે એને ભૂલવાની નથી, મોડર્નાઇઝેશન તરફ જવાનું છે. સ્પોર્ટ્સમાં પણ મોડર્નાઇઝેશન આવ્યું છે. 2 દશકા સુધી, 20 વર્ષ સુધી મેં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સાથે કામ કર્યું. નેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ લેવલે રિસર્ચ ઘણા બધા કર્યા, પરંતુ એ રિસર્ચ મારા સુધી જ મારે સીમિત નથી રાખવો. આ યુનિવર્સિટીના માધ્યમ દ્વારા જુદા જુદા ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના પ્રોફેસર્સને જુદા જુદા રિસર્ચ સંશોધનમાં જોડાય અને એ સંશોધન છે એ જ વિષય, મુખ્ય વિષય છે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી. એ ઉપરાંત જુદી જુદી કોલેજીસનો પણ વિષય છે, એફિલિએશન ઓફ ધ કોલેજીસ. તો એ કેવી રીતે છે? તો જુદી જુદી કોલેજીસ સાથે આપણે એફિલિએટ કરીએ અને દરેક કોલેજની અંદર, કચ્છ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન દરેક કોલેજમાં હું માનનીય જાડેજા સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ દરેક કોલેજના આચાર્યશ્રીને બતાવે અને એક પરિપત્ર બહાર પાડે અને એની અંદર ફિટ ઇન્ડિયા યુથ ક્લબની સ્થાપના કરે. જેવી રીતે આપણું એનસીસી ને એનએસએસ ચાલે છે, એવી રીતે ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ માટે, ફિટ ઇન્ડિયા યુથ ક્લબ માટે એક કોર્ડિનેટરની નિમણૂક કરે અને એ કોર્ડિનેટર ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સનો ટીચર જ હોય. એમાં મ્યુઝિક ટીચર કે ડ્રોઈંગ ટીચર ન ચાલે. જેથી કરીને ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના ટીચર્સને, પ્રોફેસર્સને પણ એક મોટિવેશન મળશે, એક નવી દિશા ને દશા મળશે કે હું આજે 10 છોકરાને કે 100 વિદ્યાર્થીઓને ફિઝિકલી ફિટ, મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ બનાવીશ અને દેશ માટે તૈયાર કરીશ. આ ઉમદા હેતુથી
આપણે આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનો આ એક મુદ્દો છે. આ ઉપરાંત જે આપણા નવી એજ્યુકેશન પોલિસીનું જે બેઝ છે, જેનું ફાઉન્ડેશન છે, ધેટ ઇઝ ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી. ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલીની અંદર જે વસ્તુ છે, આપણે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સમાં ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલીનો વ્યવસ્થા શું હતી એ જોવાની છે કે પ્રાચીન ભારતમાં કઈ ટાઈપનું, કયા પ્રકારનું ફિઝિકલ એજ્યુકેશન, શારીરિક શિક્ષા હતી, અર્વાચીન ભારતમાં કેવી રીતે છે. તો એ ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી, આપણા સંસ્કાર, આપણા ટ્રેડિશન, આપણા ધર્મ વગેરેની વાત આ ટોપિકોમાં થશે. ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી ઉપર પણ આ વિષય ઉપર, આ બિંદુ ઉપર અમે લોકોએ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં એક સેશન સ્પેશિયલી રાખ્યું છે. જરૂર આપ બધા પ્રાધ્યાપકોને, ભાગ લેનાર દરેક વિદ્યાર્થીઓને, ખેલાડીઓને હું એક અપીલ કરું છું કે આ સેશન સુધી, એ લાસ્ટ સેશન હશે, પણ આપણા સંસ્કારોનું, આવનારી પેઢીના સંસ્કારોનું સિંચન કરતું સેશન હશે. તો આપ જરૂર જોજો. વધુ સમય આપનો નહીં લઈ, કારણ કે આપણે 7 દિવસ સુધી યુજીસી ના નિયમ પ્રમાણે આઈઆઈએમ સ્ટાઇલથી પ્રોફેશનલ સ્પોર્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે ભારત દેશને કયા પ્રકારના શારીરિક શિક્ષકોની જરૂર છે, ગુજરાત રાજ્યને કયા પ્રકારના શારીરિક શિક્ષકોની જરૂર છે. અને માનનીય રજિસ્ટ્રાર સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે આપની યુનિવર્સિટી નાની યુનિવર્સિટી નથી. એ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલું નામ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માજીનું છે, કે જેની સાથે અમારા ગ્રેટ ગ્રેન્ડફાધર સરદારસિંહજી રાણાએ પણ કાર્ય કરેલું હતું અને દેશ માટે એમનું યોગદાન. આવી મહાન વિભૂતિનું નામ આપની યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલું હોય તો કુદરતી રીતે આપ બધા જ મહાન થઈ જાવ છો. તેથી આપ બધા વડીલોને એક વિનંતી કે આપ બધા મને મારા ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સના કામમાં સહકાર આપો અને અમારી વાતને આગળ સુધી, ગ્રાસરૂટ લેવલ સુધી, કચ્છના ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચાડો. હજી તો કચ્છની બોર્ડર પર પણ ઘણું કામ કરવા માટે આવવાનું છે. કોરોના થોડોક નડી ગયો છે, પરંતુ હવે કોરોના से हटके हम लोग जरूर आएंगे और बॉर्डर पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश प्रथम है. आप सबको मैं अनुमति के साथ हमारे जाड़िया साहब को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम. આભાર કુલપતિ મહોદય. હર હંમેશ આ જ એનર્જી, હર હંમેશ આ જ વિચાર અને એક નવી ઉર્જા ક્યારે પણ ઓનરેબલ કુલપતિશ્રીને સાંભળીએ એટલે આવી જાય. કુલપતિશ્રીનો એક વિચાર એવો હતો કે ગુજરાતની તમામ કોલેજીસ જ્યાં શારીરિક શિક્ષણ છે એનું એક કોમન એક્ટિવિટી કેલેન્ડર બને, જેમાં ટેસ્ટિંગ થાય, એ પ્રમાણેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય, એ બખૂબી એકેડેમિક ટીમ દ્વારા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને સરશ્રીની માર્ગદર્શન હેઠળ સરકારશ્રી સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. સો એ વાત કદાચ દૂર નથી કે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી જે ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર થયેલી એક કોમન એક્ટિવિટી કેલેન્ડરની વાત છે, તે લઈ અને ગુજરાતમાં સર્વ જગ્યાએ જાય. એક શુભક સમન્વય આજનો કે જ્યારે રમત ગમત ક્ષેત્રે 2 ડિકેડથી વધારેનું પોતાનું એક્ટિવ સ્પોર્ટ્સનું કાર્ય કરીને એક એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બિલ્ડિંગ માટે ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબ સ્ટેટ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા. આપણી સાથે એટલી જ બીજી મોટી વિભૂતિ કે જેઓ 3 ડિકેડ સુધી મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે વિવિધ પદો શોભાવી અને યુનિવર્સિટીના સર્વોચ્ચ પદ પર એક સર્વોચ્ચ મેનેજર તરીકે જ્યારે સ્ટેટ યુનિવર્સિટી, એ પણ જેની સાથે ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા નામ જોડાયેલું છે, તેવી યુનિવર્સિટી સાથે જોડાય છે તેવા માનનીય કુલપતિ શ્રી જાડેજા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે આજના આ ઇનોગ્રલ ફંક્શનની પ્રેસિડેન્શિયલ એડ્રેસ માટે. માનનીય શ્રી જાડેજા સાહેબ. નમસ્તે અર્જુનસિંહજી. મેં મારું કામ એકદમ અઘરું કરી દીધું કે તમારા જેવી ઉર્જા મારે કેવી રીતે લાવવી. આશીર્વાદ આપો, આશીર્વાદ આપો. હા, પણ મને મારો પેલો જે પ્રશ્ન જે છે એ હજી સોલ્વ કરવાનો તમારે બાકી છે. હા, એટલે હું સીધું આ ઇન્ફોર્મલ વાત કરવાની શરૂ કરી દીધી મેં. એટલે માનનીય ડૉક્ટર અર્જુનસિંહજી રાણા 2 વાર પીએચડી કરવું અને એ સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટમાં, એટલે બહુ અદ્ભુત વાત થઈ. અને એટલે એના જે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી અને આપણી જે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના MOU અંતર્ગત FTP જે છે શારીરિક શિક્ષણ, એટલે
મને એ વિષય મને એટલો તો હૃદયમાં સ્પર્શી ગયો સાહેબ કે શબ્દ મને ઇનવિગોરેશન એ શબ્દ મને બહુ ગમી ગયો. એટલે એનો જો મારે ગુજરાતી જો કરવું હોય તો નવપલ્લવિત કરવું, અથવા તમે એમ કહી શકો કે નવ સંચાર કરો અથવા નવ સર્જન કરવું. તો કોનું નવ સર્જન કરશો? તમે ફિઝિકલ એજ્યુકેશનનું કરશો, તમે સ્પોર્ટ્સનું કરશો. એટલે એ જે વિદ્યાર્થીઓની અંદરની જે સુષુપ્ત જે શક્તિઓ જે છે એને જાગૃત કરવી, એને નવપલ્લવિત કરવી. અદ્ભુત વિષય સાથે આપ આવ્યા છો. એટલે અને એનો જે મૂળ હેતુ જે છે એ એફડીપી થી ટ્રેન થયેલા ઇન્સ્ટ્રક્ટર્સ એ આપણા વિદ્યાર્થીઓને, એટલે અમારા કચ્છ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને ટ્રેન કરશે. એ બહુ જ અને બહુ ઝડપથી, જેમ રાણા સાહેબ જેમ કહ્યું કે જેમ નોર્મલ સર્કમસ્ટાન્સીસ આવી જાય અને ઓફલાઈન જો આપણે આવીએ તો આખું બહુ સરસ મજાની વાત થઈ જશે એની અંદર. અને અમારે જે કચ્છનું યુનિવર્સિટીનું જે સપનું જે છે એ પેલું જે આપને ખબર છે એમ કે પેલું જે 3 કરોડ રૂપિયા અમારે કચ્છ યુનિવર્સિટી આપવાના છે અને 7 કરોડ રૂપિયા જે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટીમાંથી આવવાના છે. તો એની અંદર આપ સેતુરૂપ થાવ તો અમારી કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં રમત જ રમત થઈ જાય. એટલે એની અંદર એકાદ ગ્રાઉન્ડની અંદર હું દોડતો રહું એવું આપણે એવી માંગણી કરું છું. એટલે મોદી સાહેબ ની જો વાત કરીએ, માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી, એમણે સરસ મજાની આપણે વાત કરી અને નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી જોડે તમે એમને સાંકળી લીધા. એની અંદર જે એક શબ્દ જે વાપરવામાં આવે છે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીની અંદર એ હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશનની વાત કરે છે. એટલે હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશનની અંદર આ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ઇઝ વન ઓફ ધી પાર્ટ એન્ડ વન ઓફ ધી કોર્સ. ને એ કંઈ અત્યારે કંઈ કોલેજમાં આવ્યા પછી આ કરવાની જરૂર નથી. આ તો નાનપણથી એના બી વાવ્યા હોય તો યુવાન થાય, વયસ્ક થાય અને એ વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં જાય ત્યાં સુધી એક ટેવ જે પડેલી હોય તો એ આગળ વધે એની વાત છે. એટલે એમણે જે કહ્યું છે સ્પોર્ટ્સ એજ્યુકેશન ફોર ઓલ, એટલે ડેટ હું અર્જુનસિંહજી તરફથી લઉં કે 29મી ઓગસ્ટ 2019 ફિટ ઇન્ડિયા. એની પછી મને નવો વિચાર એવો આવે છે સાહેબ કે મોદી સાહેબ કેટલું આગળ વિચારે છે. 2019માં એમણે જો ફિટ ઇન્ડિયાની વાત કરી તો તે વખતે દાખલ કે પછી કોરોના આવ્યું ને જે માણસ ફિટ હતો એ બચ્યો અને આગળ વધ્યો. હું તો એજી આગળ વિચારું છું કે કાલે પરમ દિવસે હું છાપામાં અને ન્યૂઝ મીડિયામાં બધું જોતો હતો એની અંદર કે 2036ની અંદર મોદી સાહેબ અહીંયા ઓલિમ્પિક્સ અમદાવાદની અંદર લાવવાની વાત કરી રહ્યા છે. એ કેટલું આગળનું વિચારી રહ્યા છે કે જો માણસ ફિટ ઇન્ડિયા ફિટ હશે તો આગળ વધશે. એટલે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીની અંદર આ બધું સમાવેશ થાય. અને ગઈ વખતે આપ આવ્યા હતા ત્યારે મેં 2 પ્રકારની વિદ્યાની વાત કરેલી, પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા. તો સ્પોર્ટ્સ એજ્યુકેશનના વિષયો દરેક યુનિવર્સિટીની અંદર ઇલેક્ટિવ કોર્સ તરીકે દાખલ થાય એના પ્રયત્નો એ દિશાની અંદર કરો. સ્પોર્ટ્સ કેલેન્ડર ફાઇન, પણ આ પણ એક કરવા જેવું છે કે ઇલેક્ટિવ પેપર્સ. અને અત્યારે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીની અંદર ચોઇસ બેઝડ ક્રેડિટ સિસ્ટમની વાત થઈ જ રહી છે. તો એની અંદર એક પેપર જો ફિઝિકલ એજ્યુકેશનનું જો આવે તો વધારે ને વધારે વિદ્યાર્થીઓ એનો લાભ લે. અને આની સાથે મને શ્રી અરબિંદોનું એક વાક્ય મને યાદ આવે છે કે the aim of the physical education is not to produce champions or winning athletes, but to train the body and perfect it to become an instrument capable of manifesting on physical plane a higher consciousness. આપણાની અંદર એ હાયર કોન્શિયસનેસ આપણામાં આવે ને આપણું એ શરીર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ આપણે એને ઝીલી શકીએ, એટલું આપણું બોડી સશક્ત થાય, એટલું આપણું ઇમ્યુન થાય એવી એમણે વાત કરી છે. અને એ બાબતની અંદર એમણે 4 વસ્તુની વાત કરી. બહુ આગળ હું લાંબુ નહીં કરું. He has talked about
ઇન્ટિગ્રલ એજ્યુકેશન. અને એ ઇન્ટિગ્રલ એજ્યુકેશનની અંદર એમણે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન એની વાત કરી છે. કારણ કે એ એવું માને છે બહુ સ્પષ્ટ રીતે માતાજી અને શ્રી અરવિંદો કે આપણું શરીર જો સશક્ત નહીં હોય તો આપણે સાદી પ્રાર્થના પણ કરવી હશે ને તો પણ નહીં થાય. કારણ કે આપણા બે પગ જે છે એ નીચે લબડેલા હોય ને પછી આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ તો ધ્યાન ના થાય. એટલે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન પર શ્રી અરવિંદો આશ્રમ અને ઓરોવિલેમાં ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. 95 વર્ષના 96 વર્ષના વયસ્ક માણસો પણ રોજ ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના વોકિંગ કરવા કે એમને લાયક એક્સરસાઇઝ કરવા હાજર થઈ જતા હોય છે. બીજી વાત કરી એમણે વાઇટલ પ્રાણનું એજ્યુકેશન, વાઇટલ એજ્યુકેશન. ત્રીજી વાત કરી એમણે મેન્ટલ એજ્યુકેશન, મનની કેળવણી. ચોથી વાત કરી એમણે સાયકિક અને સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશન. એટલે જે મેં અપરા વિદ્યાની જે વાત કરી ને એ ધીસ ઇઝ વોટ ધી સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશન ઇઝ ઓલ અબાઉટ. અને બીજું જે છે, the physical body needs to be maintained in a healthy state, otherwise power which pours in, દાખલા કે શક્તિપાત થતો હોય કે ભગવાનની કૃપા થતી હોય કે ગ્રેસ જો આપણા પર આવતો હોય તો અથવા આપણને કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ જે થવાનો હોય તો તે વખતે વી આર નોટ કેપેબલ ટુ રિસીવ ઇટ. એટલે આ એક ખૂબ જરૂરી છે. અને બીજા બધા મુદ્દાઓ હું કહેતો નથી કે તમારું ફોકસ વધે, તમારું કોન્સન્ટ્રેશન વધે, તમારું શિસ્ત વધે, સારી નિંદ્રા આવે તો તમે સતર્ક રહો, તમે સજાગ રહો. આ બધા જે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝના એના મુદ્દાઓ જે છે અને આપણી જે સ્નાયુઓ સશક્ત થાય એના માટે ક્યાંક જગ્યાએ મેં એક શબ્દ વાંચ્યો મેં આજે, મોટર સ્કિલ. તમારા મોટર સ્કિલ તમારી જો ડેવલપ જો થાય તો તમારા મસલ્સ તમારા ડેવલપ થાય ને એને લીધે હેન્ડ રાઇટિંગ ઇમ્પ્રૂવ થાય કે તમે નાના નાના મશીન વગાડતા થઈ જાઓ, હાર્મોનિયમ વગાડતા થઈ જાઓ, ગિટાર વગાડતા થઈ જાઓ. એના માટે આ મજબૂત જોઈએ. અત્યારે હું લખતો હતો, તમારો અંગૂઠો જે છે મને દુખતો હતો, એનો અર્થ એમ થયો કે ધીસ પોર્શન ઇઝ વીક, ઇટ હેઝ ટુ બી ડન. એટલે આ બધું જે રેગ્યુલર સ્પોર્ટ્સ હેલ્પ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ઇઝ બિહેવિયર ઓફ એ પર્સન. એટલે સ્પોર્ટ્સમેન જે હોય એ સારું બિહેવિયર કરે. સો થેન્ક યુ સો મચ સર. બહુ લાંબુ કર્યું હોય તો માફ કરજો, કારણ કે અધ્યાપકને માઇક આપવું નહીં. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. આપણા અત્યારના જે કાર્યક્રમ છે એ કાર્યક્રમની રૂપરેખા મુજબ આગળ જવામાં એક વધારે સમય લેવા માંગીશ અને અનુમતિ લેવા માંગીશ બંને કુલપતિ મહોદયોની. આપણી પાસે અત્યારે અતિથિ વિશેષ વ્યક્તિત્વ ઉપસ્થિત છે. જો અનુમતિ હોય બંને કુલપતિશ્રીઓની તો હું એમને ઇન્વાઇટ કરું છું કે એ આ પ્રોગ્રામને જોઈન કરે. આપણી સાથે અશ્વિનીજી શર્મા સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તો હું એમને વિનંતી કરીશ કે અશ્વિનીજી આપ इंग्लिश में करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट ઓન સ્ક્રીન આપ પધારશો સાહેબ અને અમને વાતની જરૂર છે સાહેબ. સાહેબ ખૂબ મને માત્ર એટલું નાનકડું કહીશ કે કોરોના મહામારી દરમિયાન પણ કરેલા કાર્યો ને સમપ મારે ખાલી એક જ વસ્તુથી કરવું છે કે મારું ચાલુ છે. એક નાનકડી વાતથી કરવી છે કે મહા રક્તદાન શિબિર નું હાલમાં જ આયોજન કરી અને ખૂબ જ સક્સેસફુલી એને એક્ઝિક્યુટ કરીને પૂર્ણ કર્યું. આમાં તો કેટલા કામ કર્યા છે. સમય ઓછો છે મારી પાસે અને મારે સાહેબને વધારે સાંભળવા છે, તો હું એમને વિનંતી કરીશ કે સર આપણી સાથે શારીરિક શિક્ષણ અને સ્પોર્ટ્સ જગતના ઘણા બધા તજજ્ઞશ્રીઓ આ માધ્યમથી જોડાયેલા છે. સો હું વિનંતી કરીશ આપને કે અમને માર્ગદર્શન આપો અને આ બધા જ લોકો નવી ઉર્જા સાથે કાર્ય કરે તેવું અમને કંઈક આપો. आशीर्वाद જોઈએ આપણે પંડિતજી. अरे पंडित जी आपका आशीर्वाद. जी प्रणाम. वंदे भारत मातरम. जाडेजा साहब प्रणाम. આજે આ સેમિનારમાં
જ્યારે બંને યુનિવર્સિટીના મહાનુભાવો, બંને સન્માનનીય કુલપતિજનો ઉપસ્થિત છે અને આટલા બધા અધ્યાપકજનો ઉપસ્થિત છે, હું તો એક સામાન્ય વ્યક્તિ છું. કારણ કે બંને જયરાજસિંહ જાડેજા સાહેબ તો મારા પરમ આદરણીય અને ગુરુતુલ્ય છે, અને ભાઈ રાણા સાહેબ તો અમારા મિત્ર છે, અને મિત્ર જે છે એ મારા કૃષ્ણ જેવા મિત્ર છે. હું તો એમની સામે અર્જુન જેવો છું. એટલે બહુ હું ખૂબ ભાગ્યશાળી છું કે અહીંયા આપણે આપ લોકોની વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ શક્યો છું, આપ લોકોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે. ખરેખર સ્પોર્ટ્સ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ कि चारे बाजू આપણે એમ કહીએ છીએ कि दौड़ेगा गुजरात और दौड़ेगा भारत, और खरेखर दौड़ेगा कब, जब हम खुद कैपेबल होंगे, खुद सक्षम होंगे. और इस महामारी, कोरोना महामारी के समय में हमने देखा है कि जिन लोगों ने योगासन, प्राणायाम या स्फूर्ति योग या इस तरह की यदि क्रियाओं में जो लोग जुड़े हैं, आपने देखा होगा वो लोग खूब सुरक्षित रहे हैं. और भारतीय संस्कृति के परंपरा के अनुसार देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जंगल में तपस्या वगैरह करते थे, जो हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, वो लोग भी यही प्रक्रिया और क्रिया करते रहे. तो मेरे ख्याल से कोरोना ने हमको फिर से, जो हम लोग वो दिशा भटक गए थे, उस दिशा को फिर से कोरोना के माध्यम से हमको फिर से उस दिशा में ले जाने के लिए हम सभी मानवीय को फिर से जागरूक करने की कोरोना ने एक रास्ता दिया है. तो मेरे ख्याल से इस समय को पॉजिटिव लेकर और इस दिशा में आगे बढ़े. और दौड़ेगा गुजरात कब दौड़ेगा, जब हम और सब शिक्षक गण, और जैसे मैं तो एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, तो जैसे हर कॉलेज के यदि शिक्षक, हर कॉलेज का यदि अध्यापक और वहाँ के विद्यार्थी, जो विद्यार्थी हमारा भविष्य है, तो उन विद्यार्थियों को यदि इस दिशा में जोड़ने की कोशिश किया जाए तो मेरे ख्याल से हम सब खूब अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे. और अपना जो पेशा है, अपना जो अध्यापकी जो अपना गुण है, हम अपने आप को सफल मानेंगे. मैं ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए सभी प्राध्यापक, सभी अतिथिगण और सभी जो दोनों कुलपतिगण, सभी महानुभावों का मैं फिर से वंदन करके फिर से प्रणाम करता हूँ. वंदे भारत मातरम. नमस्कार, अस्तु, धन्यवाद. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી અને ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી આજે ઘણી લાભાન્વિત છે આપના આશીર્વાદ મેળવીને. અશ્વિનીજી સાહેબ, આપ પધાર્યા અને આપે આમંત્રણ સ્વીકારી અને અમને આશીર્વચન આપ્યો, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે કાર્યક્રમને આગળ લઈ જઈ અને હું આજના આ 7 દિવસીય ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના ઇનોગ્રલ ફંક્શનના વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના અમારા અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર કુનાલ દેસાઈ સરને આમંત્રણ આપું છું. ડોક્ટર કુનાલ દેસાઈ સર. Thank you very much, Pathak sir. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર અને ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી ના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાનાર આ 7મા ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના ઇનોગ્રલ સેશનના ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં અત્રે ઉપસ્થિત ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સલર ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ, કે જ્યાં મેનેજમેન્ટની વાત હોય તો માત્ર રાજ્યની પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ જેમના નામને સન્માનિત લેવામાં આવે તેવા પ્રોફેસર ડોક્ટર જયરાજસિંહ જાડેજા સાહેબનો હું આશીર્વચન આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. યંગ એન્ડ ડાયનેમિક અને હર હંમેશ અમારા પથદર્શક રહેનાર અને જ્યાં ગુજરાતના તમામ વાઇસ ચાન્સલર્સને જેને મેન ઓફ એક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેવા, કારણ કે કોઈ પણ એમઓયુ થાય તો એને માત્ર કાગળ પર ન રાખતા હર હંમેશ એ એમઓયુને એમણે ખરા અર્થમાં સાર્થક કર્યા છે તેવા પ્રોફેસર ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબને અમને આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ માટે આશીર્વાદ આપવા માટે અહીંયા જે ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ હું આભારી છું. હું અશ્વિની શર્મા સર કે જે એમણે આજે આપણને ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં આશીર્વચન આપ્યા તે બદલ હું તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. હું ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજના ઓનરેબલ રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર GM બુટાણી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. હું અત્રે આજે આવનારા 7 દિવસમાં અલગ અલગ વિષયોનું આપણને જે જ્ઞાન આપવાના છે તેવા તમામ રિસોર્સ પર્સન
નો હું આભારી છું. હું વિપુલ મોદી સાહેબ અને ગૌરવ ઠાકોર સાહેબ કે જેમણે અમને આ સંકલન માટે ખૂબ જ મદદ કરી છે આ પ્રોગ્રામના, તેવા ડોક્ટર વિપુલ મોદી સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તમામ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીનો તમામ ટીચિંગ નોન ટીચિંગ સ્ટાફ તેમજ આ એફડીપીનો જે ટેકનિકલ સ્ટાફ છે તેવા અમારા મૌલિકભાઈ, આશીષભાઈ, એ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને જેમના વગર ખરેખર આ પ્રોગ્રામ શક્ય ના હોત તેવા તમામ ઉત્સાહી અને તમામ પાર્ટિસિપન્ટ જે લાભાર્થીઓ જે આ પ્રોગ્રામનો ખરેખર લાભ લેવાના છે તેવા તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. Thank you, Kunal. So thank you very much. It's always good to hear you. આજના આ 7 દિવસીય ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના ઇનોગ્રલ ફંક્શનને અત્યારે આપણે કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. સર્વે મહાનુભાવો જે આપણી સાથે જોડાયા હતા, કુલપતિ મહોદયશ્રીઓ, અશ્વિની કુમાર શર્માજી સાહેબ, રજિસ્ટ્રાર સાહેબ, સર્વેનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. હવે આપણે ટેકનિકલ સેશન તરફ જઈએ છીએ. ડિગ્નેટરી શ્રીઓની વિનંતી કે હવે આપણે ટેકનિકલ સેશન તરફ જવા માટે અમને મંજૂરી આપે. 7 દિવસીય પ્રોગ્રામના આજનો ઇનોગ્રલ ને આપણે ઓફિશિયલી કન્ક્લુડ કરીએ છીએ અને હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ ફર્સ્ટ એક્સપર્ટ સેશન તરફ. આજના ફર્સ્ટ એક્સપર્ટ શ્રી રવિન્દ્રસિંહ રાજપુરોહિત. Shri Ravindra Singh Rajpurohit is working with Swarnim Gujarat Sports University and he is handling the Department of Advanced Training and Coaching. He himself is a renowned coach. He is certified coach from NIS Patiala in basketball, and to be specific to that is he has also cleared a national eligibility test, so he is a renowned professor also. Sir has a very long list of invitation of various faculty development program and various expert sessions. I am fortunate enough to at least be a part of Sir's expert session in quite a few times. Periodization in training is one of the key aspects what Shri Ravindra Singh Rajpurohit sir is dealing with very well. His well-versed knowledge in various softwares for training and capacity building is also very well known. Sir has also trained experts in various fields of software also. So, who request Karish Shri Ravindra Singh Rajpurohit sir ne. Sir, you are panelist, so you may please carry forward your session. For any technical glitches and problems, we will be here, sir. I am currently keeping myself on mute and closing the video, requesting you to please take it. Sir, Shri Ravindra Singh Rajpurohit sir. Thank you, sir. Thank you very much for your beautiful introduction. Now, without taking much more time, I will go to the main point. Before starting the session, I would like to give my sincere thanks to Honorable Vice Chancellor of Swarnim Gujarat Sports University, Professor Arjun Rana sir, and Honorable Vice Chancellor of Kranti Guru, Shyamji Krishna Verma, Kutch University, Professor Jara Singh Jadeja sir, who take great initiative in terms of conducting 7 days online faculty development program for Kranti Guru, Shyamji Krishna Verma, Kutch University, professors, teachers and coaches. So today we are going to discuss on athlete development framework. Basically हम सभी लोग जो schools में हैं या universities में हैं या colleges में हैं या institute में हैं, being as a like savvy of physical education or sports, ये हमारी एक responsibility that we have to develop good sports person. And similarly like education system, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें 5+3+3+4 का एक फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ है जिसके अंदर हम अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकें और उनके जो माइलस्टोन है जिसको अचीव करना चाहते हैं उनके लिए उनको असिस्ट करें. इन दैट वे वी आल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करें. अनफॉर्चुनेटली इंडिया वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क टिल नाउ, बट
as a teacher, as a coach, as a physical educationist, as a professor of sports, हमें इनिशिएटिव लेना है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क डेवलप करें जो कि हमारे बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट करे और उनके जो उनके माइलस्टोन्स हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उन जिनको वो पाना चाहते हैं, उसमें वो सार्थक बने और मदद करे. So without taking much more time, I'll share my screen. So today we will discuss on athlete development framework. Basically ये framework क्या है कि जैसे आप step to step आगे बढ़ते हैं तो कैसे हम एक एथलीट को from one stage to another stage में उसको कैसे लेके जाएंगे, कैसे उसको prepare करेंगे, and once he achieve all the medals, all the laurels for the nation or for the university, उसके बाद का उसका future कैसा होना चाहिए, किस तरह से from born till death he will associate with the sports itself. So I just show you one picture. His late Kobe Bryant, most of the people know very well कि बहुत ही उम्दा basketball player थे ये, and several times he won the title of MVP, which is most valuable player of the basketball, and several times he represent USA in Olympic Games also. So behind his success, from grassroots to this podium of Olympic level, इनको लाने के पीछे जो contribution था, is done by his coach Phil Jackson, जिन्होंने इनको पूरा असिस्ट किया, पूरा सपोर्ट किया, एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया था कि इस खिलाड़ी को ग्रास रूट से पैराशूट लेवल जिसे हम कह सकते हैं ओलंपिक पोडियम लेवल तक उनको ले जाने में इन्होंने बहुत मदद की है और बहुत सपोर्ट किया है और एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया था जिसमें प्लेयर आता है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और अपनी बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में जाकर रिजल्ट डिलीवर करता है. सो in course you can say it takes 10 years of extensive training to excel in anything. आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाइए, चाहे आप डॉक्टर में जाइए, चाहे आप सिविल वर्क में जाइए, चाहे आप कार्टून में जाइए, चाहे आप एनिमेशन में जाइए, चाहे आप एक्टिंग में जाइए, किसी भी फील्ड में अगर आप 10 साल अपनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं या मैं कह सकता हूँ 10,000 घंटे आप किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड पे अपना देते हैं, then definitely you get the success in that particular field. Similar in that way, एक स्पोर्ट्समैन जो 10 साल किसी स्पोर्ट्स में देता है या फिर अपने लाइफ के 10,000 घंटे एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करता है, अपने बेटर इनपुट्स देता है, उसके अंदर अपनी हार्ड को ट्रेनिंग करके उस चीज को पाने के लिए जो ट्राई करता है, डेफिनेटली ही गेट सक्सेस. अगर वो डेडिकेटली पंचुअल रह के, प्रॉपर रेगुलर रह के और प्रॉपर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग उस फील्ड में करता है, डेफिनेटली गेट द सक्सेस. सो वी शुड ऑलवेज रिमाइंड दिस पॉइंट इन माइंड कि 10 साल या 10,000 घंटे अगर हम किसी भी फील्ड में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देंगे या लगे रहेंगे, डेफिनेटली वी गेट अ गुड आउटपुट. सो आई जस्ट शो यू वन लाइक पिक्चर इन दिस स्लाइड. ये माइलो प्रोटोन की पिक्चर है. माइलो इज द पर्सन हु इज फ्रॉम द प्रोटोन, जो कि 8 से 10 साल की उम्र में एक गाय के बच्चे को अपने कंधे पर रखता था एंड ही यूज्ड टू वॉक विद दिस. चाहे मार्केट जाना हो, चाहे घर जाना हो, चाहे बाहर ग्राउंड में घूमने जाना हो, तो हमेशा वो एक बच्चे को अपने कंधे पर रखता था, उसको घूमता रहता. पीपल मेक लाफ ऑन हिम. रीजन मैन क्या, एक पागलों की तरह एक अपने कंधे पे गाय के बच्चे को रखता है, घूमता रहता है. बट ही नो द कॉन्सेप्ट. कहीं ना कहीं इसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो मेरी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है, एक तरह से मुझे वेट बेरिंग कैपेसिटी मेरी बढ़ रही है. एंड लेटर एंड सूनर, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जो ये गाय का बच्चा था, it take the shape of ox और ये धीरे बड़ा होता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्स के अंदर. विद दिस जो माइलो था, उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो फिजिक्स थी, वो भी चेंज होती है, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन ऑफ लोड, और आप कह सकते हो ओवरलोड ट्रेनिंग जिसे आप बोलते हो, वो चीजें आप मैनेज कर सकते हैं. और जैसे जैसे ये ऑक्स ने पूरा शेप लिया, तो आप देखेंगे जो माइलो था, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो मसल्स हैं, उसकी जो लेग्स की मसल्स है, कोर मसल्स है, उसकी जो बाइसेप्स हैं, वो भी ब्रॉडर हो गई. और यही था कि उसने जो उस समय में ओलंपियाड होता था, उसके अंदर काफी वक्त he was become the champion of Olympian in the wrestling game. तो काफी नाम मशहूर है. अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे माइलो प्रोटोन, तो आपको उनकी आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी. तो ही कम विद द कॉन्सेप्ट, इसने 8 से 10 साल लगातार एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की एंड गेट आउटपुट.
तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वो रफ फ्रेमवर्क था कि मुझे इस तरीके से चलना है, देन डेफिनेटली आई विल गेट द सक्सेस इन माय मेजर कॉम्पिटिशन। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूट्स में अपने प्लेयरों के लिए कुछ ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन करना होगा जिस फ्रेमवर्क में वो आते हैं, अपनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं और 8 से 10 साल में उनको बेटर आउटपुट मिले। क्योंकि आप देखते हैं 12th पास करने के बाद जब बच्चा कॉलेज में आता है, एटलीस्ट ही इज विद अस 7 to 8 years, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, तो 7 से 8 साल वो कॉलेज में देता है। दिस इज वेरी प्रीशियस टाइम फॉर वी ऑल्सो, कि हमारे पास वो बच्चा रहता है तो हम लोगों को उस बच्चे को काफी नरिश करना है, पॉलिश करना है और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। आप इस पिक्चर में देखेंगे छोटे से बच्चे को, मे बी नाउ यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन। अगेन आई गिव बिगर पिक्चर, द टाइम earlier pictures of class maybe 8 year, then 12 year, and this one is 19 year. And finally, I hope you recognize this person. He is Michael Phelps, swimmer from the USA, और इस एथलीट को मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन कहा जाता है। The reason behind calling the most decorated Olympian, he grabbed 28 medals in Olympic Games. इस अकेले ने ओलंपिक गेम्स के अंदर 28 मेडल दिए। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष के जो मेडल हैं 1986 से लेकर 2020 तक, इतने लंबे टेन्योर के अंदर हमारे पास टोटल जो मेडल है ओलंपिक्स में, दैट इज 28। और इस अकेले खिलाड़ी के पास, और जो यूएसए खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, ही हैव 28 मेडल। तो ये गलती हम नहीं कह सकते कि हमने इतने साल स्पोर्ट्स में दिए, हमने कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना, और कहीं ना कहीं इनके पास वो सब फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से वो अपने एथलीट्स को उस फ्रेमवर्क में डालते हैं और 10 से 12 साल के बाद उनकी जो एथलीट है उनकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है। So in that way, we also work very hard कि हमें भी अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने यूनिवर्सिटीज में इस तरह का फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ेगा, जहां पर हमें प्रॉपर सिस्टम के साथ कि एटलीस्ट क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या स्टेजेस होने चाहिए, कैसे वो स्टेजेस 1 स्टेज क्रॉस करकर गो टू सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज, देन फोर्थ स्टेज, और फाइनली गेट द सक्सेस इन द ओलंपिक गेम्स। तो वो स्टेजेस हमें डिफाइन करनी है। So from this stage to this stage, the person behind the entire show is Bob Bowman. ये उनके कोचेस थे, Bob Bowman, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, and he always saying that एक अच्छे कोचेस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? Selecting the right person for the right job is the largest part of it. अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना है, अगर स्पोर्ट्स में आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छी जीते, या आपका देश मेडल गेन करे, या आपका इंस्टीट्यूट अच्छा मेडल ले, या आपकी यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन अच्छे टूर्नामेंट जीते, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आप अच्छे खिलाड़ी को चुनेंगे, अच्छी पोजीशन के लिए चुनेंगे, तो डेफिनेटली गेट द सक्सेस। सिमिलरली आप कहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं जहां पर अच्छे लोग होते हैं, डेफिनेटली वो इंस्टीट्यूट, वो यूनिवर्सिटी, वो कोचिंग सेक्टर, वो सर्विस सेक्टर हमेशा ग्रो करते हैं। सो बीइंग एज ए कोच, हम सब लोग कोच फर्टिलिटी से हैं, हम सब लोग कोच प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेशन है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो वी गो विद द एलटीएडी फ्रेमवर्क, इसे बोलते हैं हम एथलीट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं एलटीएडी। नाउ व्हाट इज एलटीएडी? एलटीएडी इज लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्लान। तो काफी नेशन, जो हर एक नेशन है, चाहे आप चाइना की बात कीजिए, चाहे यूएस की बात कीजिए, जापान की बात कीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, चाहे कनाडा की बात कीजिए, सभी कंट्री के जो भी टॉप मोस्ट ओलंपिक में फर्स्ट 5 रैंकिंग में जो कंट्रीज आती हैं, उन सब के अपने अपने फ्रेमवर्क हैं। वी आर नियर अबाउट 192 180 पोजीशन। तो आप देखेंगे जो ओलंपिक्स लेवल में जो अच्छी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, उन सब के अपने अपने फ्रेमवर्क हैं। आई शो यू फ्रेमवर्क। दिस इज द यूएसए फ्रेमवर्क, जिसकी 5 स्टेजेस पे इन्होंने अपना डिजाइन किया हुआ है। वो 5 स्टेजेस पूरा कंप्लीट करते हैं, देन दे गेट अ सक्सेस इन ओलंपिक पोडियम। इसी तरीके से आप देखेंगे यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, इन्होंने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया, अपना जो फ्रेमवर्क बनाया, दिस इज ऑफ 6 स्टेजेस, वेयर एज कनाडा हैव 7 स्टेजेस। तो मुझे जो सबसे अट्रैक्ट करता है, सबसे जो अच्छा लगता है, कनाडा का फ्रेमवर्क काफी मुझे अच्छा लगता है, और इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज सिस्टम पे, अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम पे, या फिर अपने स्टेट लेवल पे। एटलीस्ट हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने एथलीट्स को इसमें पुट करके हम बेटर रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो
So I request to everyone and all those who are listening me कि आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने जो कलीग्स के साथ बैठकर उनसे डिस्कस करने के बाद कुछ ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन आप करें. इवनली और ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर जोशी नाना सर इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क सेटअप करें पूरे स्टेट लेवल पे. गुजरात में हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में एक कॉमन करिकुलम हो. तो बहुत अच्छी सोच है कि इस तरह का फ्रेमवर्क अगर कॉमन होगा then definitely we get good results in national games as well as in international tournament. So now what is 7 stages of LTD framework of Canada आप देखेंगे. The first one is active start कि हमें कहीं ना कहीं से जो बच्चा होता है एक्टिव स्टार्ट करता है, स्टार्ट रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग. आपके घर में आप बच्चे देखते होंगे तो छोटे बच्चे हैं, जॉग करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं. So this is called the active start stage. Then second one is fundamental कि जो भी एक्टिविटी करें उसके अंदर फन होना चाहिए. इफ यू पुट फन इन एन एक्टिविटी तो बच्चों को उसमें काफी मजा आता है और टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट्स. अगर आप स्पोर्ट्स से फन निकाल देंगे तो सिर्फ मेंटल प्रेशर बच जाएगा. तो वी हैव टू डेवलप द फन एक्टिविटीज एट द अर्ली स्टेज. द थर्ड वन इज लर्न टू ट्रेन. इसके अंदर बच्चा थर्ड स्टेज में आने के बाद वो कोशिश करता है, वो ट्रेनिंग करता है कुछ चीज नई सीखने की. चाहे आप उसे कोई भी मूवमेंट सिखाएंगे, कोई भी सिंपल स्क्वाट, लंजेस, रनिंग, कोई भी मूवमेंट आप सिखाते हैं तो उसको लर्न करने के लिए अपने आप को ट्रेन करता है कि हाँ मुझे चीज सीखनी है. छोटे बच्चे लिखोगे कोई चीज पे चढ़ेगा, गिरेगा, वो 8 से 10 बार ट्राई करता है. रीजन बेहिंड बिकॉज यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू. दैट इज लर्न टू ट्रेन स्टेज. एंड फोर्थ स्टेज इज ट्रेन टू ट्रेन. अब एथलीट फोर्थ स्टेज में जब आता है तो अपने आप को ट्रेन करता है, इसलिए ताकि वो और अच्छे से वो ट्रेनिंग कर सके. उसको पता है कि इस चीज में स्ट्रेंथ चाहिए. सपोज अगर वो जूडो प्लेयर है, रेसलिंग प्लेयर है, तो उसकी ट्रेनिंग करने के लिए उसको पता है कि उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी किसकी, स्ट्रेंथ की. देन ओनली ही कैन प्ले द गेम ऑफ रेसलिंग. तो इस स्टेज में आके वो ट्रेन टू ट्रेन स्टेज में आता है. देन फिफ्थ वन इज ट्रेन टू कम्पीट. फिफ्थ स्टेज जो हमारी है वो है ट्रेन टू कम्पीट. कि अब हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं किस लिए, कॉम्पिटिशंस के लिए. Maybe it's for district competition, state competition, national competition, or international competition. Then sixth stage is train to win. कि अब once you're done with the train to compete, अब आपके सामने जो next stage है वो किस लिए है कि अब आप जीतने के लिए खेलते हैं. आप ट्रेनिंग अपने आप को हार्ड देते हैं कि आप ओलंपिक में या एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आप मेडल गेन कर सकते. तो ये जो ट्रेनिंग होती है इसको हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग. एकदम हाई परफॉर्मेंस लेवल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप मीट कर लें. जिस तरीके आप प्रैक्टिस करते हैं सर से आप अपने एथलीट को ट्रेन करते हैं. सो दैट इज द सिक्स्थ स्टेज इज ट्रेन टू विन. सो वंस यू अचीव द मेडल, ट्रेन टू विन में आपने मेडल गेन कर लिया, आपने अचीवमेंट गेन कर, उसके बाद क्या, देन यू गो फॉर द एक्टिव फॉर लाइफ. कि आपने मेडल अचीव कर लिया, उसके बाद भी आप अपने नेशन को, आप अपने स्टेट को वापस अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप शेयर कर सकें, अपनी डिलीवरी वापस दे सकें, और उन जो आपके अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द स्टार्स हैं उनको आप अच्छे से इनपुट कर सकें, उनको फीडबैक कर सकें, ताकि वो भी आने वाले टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे मेडल्स ले सकें. दैट इज एक्टिव फॉर लाइफ. तो ये जो 7 स्टेजेस हैं, इसी 7 स्टेजेस हम काम करते हैं या इसके सिमिलर पैटर्न पे हम अगर वर्क करते हैं, डेफिनेटली वी गेट द गुड रिजल्ट्स इन नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट. तो यही जो माइकल फेल्प्स का था, फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ट्रेन टू विन स्टेज तक तो वो गए. एंड एक्टिव फॉर लाइफ के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही स्विमिंग पूल एरिया के अंदर जो आने वाले फ्यूचर के जो स्टार्स थे, स्विमर्स थे, उनको ट्रेन करते हैं. तो अभी भी आफ्टर गेटिंग द मेडल्स, उसके बाद के जो उनका फ्यूचर है उसमें वो एज ए कोच वर्क कर रहे हैं और अपने जो आने वाले जो स्टार्स हैं उनको ट्रेन कर. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द पीपल हु अटैच विद द स्पोर्ट्स एंड सर्विंग फॉर द नेशन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टिव फॉर लाइफ. तो आज हम सभी लोग, हम अपने 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 टाइम पे सबने ऑल इंडिया टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल हम खेले होंगे, और उसके बाद हम अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपने कॉलेजेस में एज ए एक्टिव फॉर लाइफ एसोसिएट हो गए कि हम आने वाले जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं. तो लेकिन उसका हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किस कैसे कैसे स्टेज से हमें आगे निकलना है. तो नाउ स्टेजेस फॉर एथलीट डेवलपमेंट, जो 7 स्टेजेस मैंने आपको बताई, उसको ब्रेकअप किया गया है. द फर्स्ट 3 स्टेजेस कम अंडर एनकरेज स्पोर्ट्स फॉर ऑल. जो पहली 3 स्टेजेस हैं इसमें एक्टिव स्टार्ट है, फंडामेंटल है, लर्न टू ट्रेन. जब बच्चा अपना एक्टिव स्टार्ट लेता है,
उसके बाद वो फंडामेंटल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है, देन ही गो फॉर द लर्न टू ट्रेन स्टेज जाता है। तो ये जो 3 स्टेजेस होती हैं इनको बोलते हैं इंक्रीज स्पोर्ट्स फॉर ऑल। इसका मतलब है कि ये 3 स्टेजेस हैं जो बच्चों को इंक्रीज करती है। जो खेल है वो किसी कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, वो सबके लिए। जो बच्चा स्कूल में आता है, चाहे वो अच्छा पढ़ता हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो पुअर हो, उसको सबको करना चाहिए, राइट। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं हमें सबके लिए रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट 3 स्टेजेस फोकस ऑन एक्सीलेंस। कि इस ग्रुप के अंदर अगर ये 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 बच्चे में से हम कुछ पिक करते हैं जो अपना करियर या फिर जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो हार्डली आफ्टर 10,000 में से हमें 1000 बच्चे से मिल जाते हैं, 10% और 8% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फोकस करते हैं एक्सीलेंस के ऊपर, कि उन्हें स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना है। और जैसे आई गिव द एग्जांपल ऑफ सोनी मिर्जा स्पोर्ट्स डे, हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट पे या स्टेट पे या नेशनल लेवल पे जो मेडलिस्ट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना करियर स्पोर्ट्स में देखते हैं, राइट। सो दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स put more emphasis on the sports and they get a degree in the sports। ये तो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्योरली डेडिकेटली स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, ट्रेन टू ट्रेन, ट्रेन टू कम्पीट एंड ट्रेन टू विन, तो ये जो स्टेजेस हैं ये होती है फोकस ऑन एक्सीलेंस, कि आप स्पोर्ट्स में कैसे एक्सीलेंस गेन करें। सो वंस यू गेट द एक्सीलेंस और वंस यू गेट द अचीवमेंट, उसके बाद जो आप जाते हैं कि लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी के साथ एसोसिएट रहें, आप उसके साथ जुड़े हैं। तो इसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई है, कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ, फिट फॉर लाइफ एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी लीडर्स एंड कोच। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, जब बच्चा हमारे पास आता है फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, 0 से 6 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उन पे हम एम्फेसिस हमें करना चाहिए फंडामेंटल मूवमेंट्स को। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ड्यूटी इज असाइन्ड टू स्कूल टीचर। जो भी स्कूल टीचर के जो फिजिकल टीचर हैं या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं या जो कोचेज हैं, उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए कॉलेज टीचर्स, एज ए कॉलेज कोचेज और एज ए कॉलेज प्रोफेसर हमारे पास इस एज कैटेगरी के बच्चे नहीं आए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दी सीनियर स्टूडेंट्स, स्पेशली दोज हु पास द 12th क्लास। लेकिन उसके बावजूद भी हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 से 6 ईयर्स के बीच में जो हमें बच्चों को एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, दैट इज फंडामेंटल मूवमेंट्स। ये फंडामेंटल मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना। Then we go for the fundamental movement skills। अब सेकंड जो स्टेज है 6 से 9 साल के बच्चों के लिए, उनमें हमें फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स को उनको सिखाना चाहिए। Then 9 to 12 में जब बच्चा आता है, then we go for fundamental sports। तो ये 0 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स क्या है, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग। ये जो एक्टिविटीज हैं हमें अपनी स्पोर्ट्स के अंदर इन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चा प्रॉपर वॉक करना सीखे। जैसे एक लाइन पे वॉक करना हो गया, प्रॉपर्ली जॉगिंग, आर्म एक्शन हो गए, डबल लेग जंप, सिंगल लेग जंप, हॉपिंग, ये सब सिखाना चाहिए। थ्रोइंग विद राइट हैंड, थ्रोइंग विद लेफ्ट हैंड, कैचिंग फ्रॉम राइट हैंड, कैचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कैचिंग फ्रॉम बोथ हैंड, राइट। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है, ये हमें फंडामेंटल मूवमेंट्स जो है इनिशियल स्टेज जो होती है बच्चों की, उसमें हमें सिखाना चाहिए। देन सेकेंड स्टेज फ्रॉम 6 to 9 ईयर्स में जब बच्चा आता है, इस एज में जो प्रॉपर्ली मूवमेंट होते हैं स्किल रिलेटेड, वो हमें सिखाने चाहिए। जैसे स्क्वाट है, प्रॉपर स्क्वाट कैसे होगा, लंजेस पोजीशन कैसी होगी, पुश कैसे करना है, पुल कैसे करना है, रोटेट मूवमेंट कैसे होगा। ये जो चीजें होती है, एक्टिविटीज होती हैं, ये हम सिखाते हैं बच्चों को 6 से 9 साल के। जैसे जैसे टाइम निकलता है फ्रॉम 9 to 12 ईयर्स में जब बच्चा पहुंचता है, तो जो उसकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स हैं, सपोज समवन इज प्लेइंग टेनिस, तो टेनिस के अंदर क्या होगा, आपका फॉरहैंड है, आपका बैकहैंड है, आपकी सर्व है, आपकी वॉली है, आपका स्मैश है। इन एक्टिविटीज में बेसिक टेक्निक्स के ऊपर हम वर्कआउट करें। दिस इज फ्रॉम 9 to 12। और ये तीनों स्टेज को हम बोलते हैं बेस, फाउंडेशन ऑफ द प्लेयर, वो है। अगर आप बेस अच्छा बनाएंगे, बच्चों की जो फंडामेंटल मूवमेंट है, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स है एंड फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स है, इस पे अगर हम फोकस करेंगे, इसको मजबूत करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो स्पोर्ट्समैन है उनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो अच्छे से आगे चलकर अपना ज्यादा नरिशमेंट कर सकते हैं, ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो वो 3 लाइन जो हमने बताई, डिस्कस की है, दिस इज द बेस ऑफ एक्सीलेंस, जिसके अंदर फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स एंड फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स, और इस पार्ट को बोलते हैं फिजिकल लिटरेसी भी बोलते हैं। ये जो फिजिकल लिटरेसी है,
ये सभी बच्चों को हर एक स्कूल्स में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे का जो बेस ऑफ एक्सीलेंस का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए उसका वो बेस है, वो आप देखेंगे जितना ब्रॉडर बेस होगा उतनी ही आप टॉलर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो फिजिकल लिटरेसी कैन बी डिफाइंड एज द मोटिवेशन। फिजिकल लिटरेसी क्या है? एक तरह का मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, एक फिजिकल कॉम्पिटेंस है एंड एक अंडरस्टैंडिंग है। नॉलेज एक्टिविटी एट एन इंडिविजुअली अप्रोप्रिएट लेवल थ्रू आउट द लाइफ। और ये जो नॉलेज गेन करता है, जो एक्टिविटी गेन करता है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, जो नॉलेज मिलता है उसको, वो उसके साथ एक प्लेयर के साथ, एक एथलीट के साथ थ्रू आउट द लाइफ के साथ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे मैं आपको पिक्चर में एक आइसबर्ग दिखा रहा हूँ। जो आइसबर्ग होता है वो ऊपर से होता है कि आइसबर्ग वेरी स्मॉल, छोटी सी पत्थर पड़ा है, लेकिन जो उसके नीचे जो उसका बेस होता है वेरी ब्रॉड है, जिसकी वजह से उसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिमिलर इन दैट वे जो हमारे स्पोर्ट्समैन है, जो इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, आप लोग देखते हैं कि हाँ यार ये यूसेन बोल्ट 10 रन पे 9.56 सेकंड के अंदर 100 मीटर रन कर लेता है, लेकिन उसके पीछे उसके 10 साल की मेहनत होती है, उसका जो बेस होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वी ऑलवेज अप्रिशिएट सचिन तेंदुलकर कि इनकी बैटिंग कितनी अच्छी है, कितना अच्छा वो खेलते हैं, लेकिन उन्होंने कितना टाइम दिया होगा, कितना अपना जो बेस है, अपना फंडामेंटल्स है, उनको कितना स्ट्रांग किया होगा, तब जाके आपको जो उसकी परफॉर्मेंस वो दिखती है। सो सिमिलरली एज ए कोच, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, इट्स आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनका जो फंडामेंटल मूवमेंट है और फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स हैं, उनको हमें इतना अच्छा बिल्डअप करना है कि आगे चलकर जब वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो फिजिकल लिटरेसी जो से मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स के अंदर जो आप बताते हैं, लंजेस हैं, आपका जो स्क्वाट है, ये जो आप फॉरवर्ड है, बैकवर्ड मूवमेंट्स है, इनका क्या इम्पैक्ट है। आप दो पिक्चर देख रहे हैं, दोनों पिक्चर में जो टेनिस प्लेयर है बैकहैंड शॉट खेल रहे हैं, राइट। बैकहैंड शॉट में आप पिक्चर देख के समझ जाएंगे कि हाँ किस प्लेयर का जो मूवमेंट है बहुत अच्छा है, रिफाइंड है, और कौन से प्लेयर का मूवमेंट ऑकवर्ड है। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर लंचिंग पोजीशन है इसके अंदर इन पिक्चर 1, प्रॉपर बेस मूवमेंट किया है, एकदम आपको जो कोर पार्ट है उसको एकदम से सही से ट्विस्ट किया है। फिर आप देखेंगे शोल्डर का रोटेशन है वो एकदम प्रॉपरली है। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं इनका फिजिकल लिटरेसी का जो बेस है वो काफी अच्छा रहा है इस प्लेयर का, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूशन इसका एकदम आराम से हो रहा है, फ्री फ्लो एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो फंडामेंटल मूवमेंट्स की वजह से स्क्वाट है, लंज है, पुश है, रोटेट, जैसे मैंने बताया था, ये अच्छे से परफॉर्म किया है। फंडामेंटल स्पोर्ट्स के लिए इसकी वजह से फॉरहैंड, बैकहैंड, सर्व, वॉली स्मैश ये अपना इंप्रूवमेंट की तरफ जाती है। सो दोज हु आर लिसनिंग मी एज ए टीचर, एज ए कोच, अगर आप कहीं ट्रेनिंग देते हैं तो आपको कोशिश करना है कि बच्चों में जो फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स और फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स, इस पे आपको अच्छे से काम करना। Now we go by stage by stage। जैसे मैंने बताया कि 12 से 16 साल की उम्र में, जैसे हमने डिस्कस किया, 9 से 12 साल तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद 12 से 16 साल की उम्र में जब बच्चा आता है तो ये जो फेस होता है इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग इंजन फेस। अब बिल्डिंग इंजन क्या, हमारी बॉडी एक इंजन है, इसको बिल्ड करने जैसे आपके मस्कुलर सिस्टम है, आपका जो कार्डियक सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके जो बोन्स हैं, इन सबको आप मजबूत करते हैं, इन सबको आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि आप अपने स्पोर्ट्स बेसिक स्किल को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें, अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए आप अपनी मोटर एबिलिटीज हैं, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, स्पीड, पावर, इन सबको आप बिल्डअप करते हैं ताकि आपका जो स्पोर्ट्स बेसिक स्किल है उसमें आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। देन फ्रॉम लाइक एज ऑफ 16 to 23 ईयर्स, इस फेज को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजिंग इंजन। ऑप्टिमाइजिंग इंजन क्या, पहले आपने अपने इंजन को बिल्ड किया, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया, अब आप अपनी बॉडी को चाहते हैं कि ऑप्टिमाइज लेवल पे ये परफॉर्म करें, कि आपकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट ना हो, लेकिन एक अच्छी लेवल की जो आपका स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस है, इस तरह की परफॉर्मेंस आप देते हैं। जब भी आप जाएं, आपका जो लेवल है गेम का वो अच्छा रहे, आपकी जो स्पोर्ट्स है, आपके जो इवेंट है या पोजिशन वाइज जो जहाँ पोजिशन पे आप खेलते हैं उस पर आपकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट ना करे। इसके लिए आप क्या करते हैं, कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं, कंटिन्यू प्रॉपर डाइट लेते हैं, कंटिन्यू प्रॉपर रिकवरी करते हैं, और आपने जो साइक्लिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग का उसको आप नेगेटिव थ्रेड्स को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजिंग इंजन फेज, व्हिच इज फ्रॉम लाइक 16 to 23 years। देन वी यूज्ड टू से 19 प्लस की एज से ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं,
ओलंपिक पोडियम लेवल की हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, कि जिसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि जो आपने अपना इंजन जो है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को जो आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसको मैक्सिमाइज लिमिट तक आप लेके जाएं, अपना बेस्ट पोटेंशियल को यूज करें, अपना बेस्ट डिलीवरीज आप दे पाए स्पोर्ट्स के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम इंजन फेस, जिसके अंदर मोस्टली जितने भी ओलंपिक प्लेयर्स हैं आप देखते हैं जो अच्छे लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो चैंपियंस बनते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी का 100% एफर्ट लगाते हैं, तब जाकर वो चैंपियन बनते हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइज द इंजन। एंड वंस यू गो विद दैट, उसके बाद आप जाते हैं हेल्दी लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज की। आपने ओलंपिक लेवल पे मेडल जीत लिया, आपने अचीवमेंट गेन कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप कोशिश करते हैं एक अच्छी लाइफ आप जिए, एक हेल्दी लाइफ आप जिए, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहें और अपने देश को, अपने राज्य को आप सर्व करते रहें और अपने प्लेयर्स को आप स्ट्रॉन्ग बनाते रहें और अपने आप को भी फिट रखें। और जो लास्ट इज दी एक्टिव फॉर लाइफ, जो मैंने आपको इसमें डिस्कस की, हेल्दी लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी। तो एक्टिव फॉर लाइफ के अंदर जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ, फिट फॉर लाइफ एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। तो आपने एक बार मेडल गेन कर लिए, आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल मेडल ले लेते हैं, उसके बाद उनका क्या, या हम लोग अपनी ही बात करें कि हम अपने टाइम में अच्छा स्पोर्ट्स करते थे, खेलते थे, हमने सब मेडल गेन किए, तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या? लाइक कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ, पहला है कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ, मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहते हैं। आप हर दिन 60 से 30 मिनट की कोई इंटेंसिटी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, जरूरी नहीं है वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स आप प्ले करते थे वही हो, इट मे बी चेंज। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जीव मिल्खा, आप कपिल देव को देखिए, मिल्खा सिंह को देखिए, या फिर आप कोई भी रेनॉल्ड, सचिन तेंदुलकर को देखिए, युवराज सिंह को देखिए, इन सब ने क्रिकेट से लेके चेंज करके अपने आप को गोल्फ में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दे यूज्ड टू प्ले द गोल्फ गेम, ठीक है। तो इसी तरह काफी फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो टेनिस खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपना मेन कॉम्पिटिटिव चेंज करके अपनी एज के हिसाब से वो कुछ ना कुछ ऐसा गेम या रिक्रिएशन एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो स्टिल दे फील द कॉम्पिटिटिव लाइफ और वो उन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड फिट फॉर लाइफ, 30 से 60 मिनट की हमें भी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को फिट रख सकें, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे स्पिनिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे योगा हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको मैटर करें और अपने आप को फिट रखें, विच इज द नीड ऑफ दिस टाइम। इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस। तो हम सभी लोग अब फिटनेस के प्रति जागरूक हुए हैं और पूरा भारतवर्ष नहीं कहूँगा, पूरा संसार इस चीज के, पूरा विश्व इस चीज के पीछे है कि अब अपनी फिटनेस पे हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो नाउ इट्स आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फिजिकल टीचर, एज ए कोचेज, एज ए स्पोर्ट्स मेंटर, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरह का डिजाइन प्रोग्राम अपने लोगों को दें ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें। एंड थर्ड वन इज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी लीडर्स, कि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे कंपटीशन के अंदर आप रिटायरमेंट में हो गए, इसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिवली और इनएक्टिवली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, एज ए ऑफिशियल, एज ए रेफरी, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्लेस करके आप स्पोर्ट्स से कनेक्ट रह सकते हैं। नाउ आई जस्ट शो यू वन सिनेरियो ऑफ प्रोविजन ऑफ एथलीट फ्रेमवर्क, कि हमें किस तरह चलना चाहिए, और काफी ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया हुआ है। लाइक एक्टिव स्टार्ट, आप देखते हैं छोटे बच्चे जब होते हैं वो सभी खेलते हैं। मैं मानूंगा मुश्किल से 1 या 2% ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं खेलते, जो कुछ नहीं एक्टिविटी करते। हो सकता है उनको कुछ न्यूरॉन डिसऑर्डर हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू की बात अलग है, बाकी 99% बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देन दे गो फंडामेंटल ऑल्सो, सभी बच्चे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, थ्रोइंग, कैचिंग सभी करते हैं फंडामेंटल। और स्कूल लेवल पे आने के बाद हमें इसको थोड़ा और अच्छा नरिश करना चाहिए, उनको बच्चों को बताना चाहिए। एंड थर्ड स्टेज इज लर्न टू ट्रेन। तो मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर अगर 100 बच्चे, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 बच्चे हैं जो एक्टिव स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल भी करते हैं, लर्न टू ट्रेन स्टेज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक हमें 100 के 100 बच्चों को ट्रेन करना भी चाहिए। भारतवर्ष में जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस स्टेज तक कॉमन प्लेटफॉर्म देना चाहिए, विच द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल सिस्टम। अब इस 100 में से 15 बच्चे ऐसे होंगे जो आगे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फर्स्ट 15 स्टूडेंट टेक पार्ट इन ट्रेन। 15 बच्चे ने ट्रेन पार्ट किया कि हमें ट्रेनिंग करनी है कुछ सीखने के लिए।
और जब वो सीखने जाते हैं तो कुछ ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, कुछ को इंजरीज भी होती है, कुछ लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स उनके लिए लायक नहीं है, वो उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ट्रेनिंग बहुत टफ है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, तो कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं। तो उस 15 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन टू कम्पीट लेवल पे आते हैं कि नहीं, हम 5 लोग परफेक्ट हैं और हम कंपटीशन खेलेंगे, टूर्नामेंट जीतेंगे। तो 5 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 5 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल में मेडल लेते हैं, राइट? तो दे गो फॉर द ट्रेन टू। अभी जस्ट मैंने बात की कि 100 बच्चे में से 1 या 2 बच्चे हैं जो मेडल गेन कर रहे हैं, व्हाट अबाउट 98 स्टूडेंट? तो 98 स्टूडेंट्स का क्या? तो फॉर दैट दीज स्टूडेंट्स की उनको पता चल रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव फॉर लाइफ, फिट फॉर लाइफ और कम्पीट फॉर लाइफ। अपनी लाइफ को एक्टिव करने के लिए, अपनी लाइफ में अपने आपको फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाए, राइट? तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल नाउ। तो इस तरीके से हम स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट रहकर, टच में रहकर अपने स्पोर्ट्स को सर्व कर सकते हैं और अपने आप को बेनिफिट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट 3 स्टेजेस डिफाइंड फॉर फिजिकल लिटरेसी विच इज कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए दिस यूनिट। द नेक्स्ट 3 स्टेजेस फ्रॉम ट्रेन टू विन, दैट इज फॉर एक्सीलेंस। जिनको स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस गेन करना है वो इस लेवल पे जाते हैं। एंड रिमेनिंग ऑल दे गो फॉर फिजिकल लिटरेसी फॉर लाइफ, कंप्लीट लाइफ लाइफ के लिए फिजिकल लिटरेसी को अपना हिस्सा बनाते हैं लाइफ का, और स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। दिस इज ऑल द कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर पर्सन हु डू समथिंग इन द वी वांट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स, फ्रॉम लाइक एक्टिव स्टार्ट टू ट्रेन टू विन। और काफी एजेंसीज हम अपने आसपास जो एजेंसीज देखते हैं, मतलब जहां पर ये चीजों को प्रमोट हम कर सकते हैं, एक्टिव स्टार्ट्स, 3 स्टेजेस जो मैं बता रहा हूँ आपको, दीज आर ऑल आर द स्टेजेस। एक्टिव स्टार्ट के लिए जो कम्युनिटी सेंटर हैं, डे केयर हैं, होम में घर पर रहकर भी बच्चों को हम एक्टिव स्टार्ट के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। और द फंडामेंटल्स को डेवलप करना है तो स्कूल सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि बच्चा 7 से 8 घंटे स्कूल में रहता है। तो स्कूल है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, क्लब्स हैं या घर हैं, वहां पर हम बच्चों को फंडामेंटल एक्टिविटीज को प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड थर्ड, लर्न टू ट्रेन। अगर आपको कुछ सीखने के लिए ट्रेन करना है, दैट इज डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, स्कूल्स हैं, या घर पे भी आप इस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ट्रेन टू ट्रेन की, तो आपको एक अच्छे कोचेस चाहिए, अच्छे मेंटर्स चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो आप प्योरली परफेक्ट ट्रेनिंग दें, ताकि आप इंजरी से बचे रहें और स्पोर्ट्स में अच्छा एक्सेल कर सकें। सो फॉर दैट वी नीड स्कूल्स जहाँ पर अच्छे कोचेस हो, स्पोर्ट्स स्कूल्स लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल इन गुजरात, स्पोर्ट्स एकेडमीज, वहां जाके हम अपना ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन टू कम्पीट की बात आती है, इस स्टेज में आने के बाद बच्चा 18 से 19 साल का हो जाता है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है अच्छी यूनिवर्सिटीज की, अच्छी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज की, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, अच्छे कॉलेजेस की, जहाँ पर स्पोर्ट्स का थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंस हो ज्यादा हो, ताकि बच्चा ट्रेन टू कम्पीट कर सके। बेस्ट जोन है या AI जोन टूर्नामेंट्स होती है, नेशनल्स होती है, इससे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। एंड ट्रेन टू विन के लिए जितने भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं या फिर आप नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें जाके आप हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग दे सकते हैं विद प्रॉपर इक्विपमेंट और गैजेट। देन एक्टिव फॉर लाइफ, कि आपने टाइटल्स गेन कर लिया, आप अचीवमेंट गेन कर लिया, उसके बाद कोई मास्टर क्लब है या कम्युनिटी सेंटर से पार्ट है, ट्रेल्स हैं, या घर में रहकर भी आप अपने आप को लाइफ को एक्टिव रख सकते हैं। तो दीज ऑल आर द एजेंसी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक जब भी आपको परफॉर्मेंस गेन करनी है, अचीवमेंट गेन करने हैं, तो ये जो 10S हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्किल, सप्पलनेस। तो इन चीजों पे जो स्टेमिना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है तो हमें प्लेयर को स्टेमिना का अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। We have to develop their strength. There are so many types of strength, maximum, explosive strength, endurance, उस पर डिटेल डिस्कस नहीं होगा, लेकिन यस हमें स्ट्रेंथ का वर्कआउट करना पड़ेगा प्लेयर्स के। You have to work on the speed, प्लेयर्स की जो स्पीड है उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। You have to work on their skills, जिस गेम में भी आता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी गेम है, तो उसके जो फंडामेंटल स्किल्स हैं उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू वर्क ऑन द सप्पलनेस, द फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि उनकी जो रेंज ऑफ मोशन हो वो काफी अच्छा रहे, किसी तरह की इंजरीज की वो शिकार ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुड स्टेचर्स रिक्वायरमेंट, स्कूलिंग, साइकोलॉजी, सस्टेनेंस एंड सोशल कल्चर। आपको एक अच्छा स्टेचर भी चाहिए, मीन्स कि आपका जो गेम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपका एंथ्रोपोमेट्रिक स्ट्रक्चर है
वो इम्पोर्टेंट है। आपकी अच्छी स्कूलिंग हो जहाँ से आप अच्छा अपना बेस क्रिएट कर सकें, अपनी एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें। वी नीड ए गुड साइकोलॉजिकल बूस्टअप कि हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं बट मेंटली बहुत वीक हैं, तो वो नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स के अंदर आपको फिजिकली प्लस मेंटली दोनों लेवल पे आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल गेन कर पाए। सस्टेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट सस्टेनेंस, कि आप लंबे टाइम तक आप अपनी परफॉर्मेंस को दे सकें। सचिन तेंदुलकर अगर अपनी लाइफ में 100 मारता तो क्या वो भारत रत्न बन पाते? वो नहीं बन पाते। भारत रत्न क्यों बने? क्योंकि वो सस्टेन थे, उन्होंने कंटिन्यू परफॉर्मेंस दी। थ्रू द 21 ईयर्स जितने वो खेले, 21-20 ईयर्स जितना वो खेले हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लगातार परफॉर्मेंस दी। तो सस्टेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेफिनेटली सोशल कल्चर, जो रिस्पेक्ट्स हैं, जो कलीनेस है, लाइक मैन इज अ सोशल एनिमल। सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, जैसे स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट आपको कैसे क्रिएट करना है, एज ए टीम कोहेसिवनेस आपको कैसे रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगर 10 क्वालिटीज आप अपने प्लेयर में बिल्डअप करते हैं, देन डेफिनेटली वो एक अच्छे ट्रेन एथलीट बनेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को भी वो अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे। एंड फॉर दैट वी नीड ए गुड प्लान। तो अगर हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 10 से 12 साल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वी नीड ए गुड प्लान। इसके बारे में स्ट्रेंथ का जो प्लान है वो अंकुर सर आपको आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली इफ वी गेट वन मोर सेशन, हम प्रिपरेशन पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रिपरेशन। इसके अंदर ये पूरा डिस्कशन होता है, इज वेरी बिग कॉन्सेप्ट, उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करके आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइक वी हैव मंथ ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू 7 सितंबर। ये जो लाइन दिख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट द मंथ्स October, November, December, Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September. So this is the time frame कि हमारे पास 12 महीने। अब इस 12 महीने को हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे अपने ट्रेनिंग की? तो फर्स्ट 6.5 months we give preparatory phase. इसमें हम अपने एथलीट को प्रिपेयर करेंगे। The next 4 months, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस फॉर द कॉम्पिटिशन फेज, कि जितने भी आपके बैच होती है, AI होती है, इस टाइम में होगी, तो ये हमारा कंपटीशन फेज रहेगा। देन सितंबर ऑनवर्ड वी गो फॉर द ट्रांजिशन फेज, इसमें हम रिकवरी फेज में जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो जनरल प्रिपरेटरी का मेन एम क्या है कि हमें गोल सेट करना है प्रॉपर्ली कि किस टूर्नामेंट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रॉपर हो, एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रॉपर हो, जो हमारी गेम की जो स्किल है उसमें हम करेक्शन करें। देन स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स इसमें बताई जाती है कैसे इंप्लीमेंट करनी है। प्रैक्टिकली नहीं करते बट थ्योरेटिकली हम उसको समझते हैं। Then we go for the specific preparatory। इसके अंदर आने के बाद जो स्पेसिफिक फिटनेस है, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको हम एक्सट्रीम लेवल पे जिसे कहते हैं मैक्सिमाइज द इंजन, इस फेस में लेके जाते हैं। और जो भी हमारे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनको भी हम रिफाइन करते हैं। एंड थर्ड फेज इज कॉम्पिटिटिव फेज। जब हम कॉम्पिटिशन में आते हैं तो हम मेंटल स्ट्रेटेजी फॉर कॉम्पिटिशन प्रिपेयर करते हैं, अपने माइंड को मेकअप करते हैं कि हम अपने परफॉर्मेंस जो भी हमने सीखा है उसको अच्छे से हम डिलीवर कर सकें, वहां कोई कमी ना हो, और अपनी जो फिटनेस लेवल है उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कॉम्पिटिशन फेज के अंदर। और अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं, अपनी जो टैक्टिक्स हैं, उनको और शार्पन करते हैं कि अपनी बेस्ट हम परफॉर्मेंस इस कॉम्पिटिशन में दें। सो वंस वी डन विद द कॉम्पिटिशन, जब हम ट्रांजिशन फेज में आते हैं, देन वी गो फॉर द रेस्ट एंड रिकवरी, एक्टिव रेस्ट, हम प्योरली रेस्ट लेते हैं और अपनी बॉडी को रिस्टोरेशन फॉर्म में लेके आते हैं ताकि नेक्स्ट लेवल पे जब भी हम प्रिपेयर करें तो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिपरेशन का, इट टेक 3 or 4 सेशन। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट एक्सप्लेन होल थिंग इन वन सेशन और जस्ट 5 to 10 मिनट्स। लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे हमने बताया कि जो आपको पूरा एनुअली प्लान होता है, ये डिवाइडेड 3 पार्ट्स: प्रिपरेटरी, कंपटीशन, ट्रांजिशन फेज। जो प्रिपरेटरी के सब फेजेस है, दैट इज जनरल प्रिपरेटरी एंड स्पेसिफिक प्रिपरेटरी। कंपटीशन के जो सब फेज है, प्री कॉम्पिटिटिव फेज में आप क्या करेंगे और कॉम्पिटिशन फेज में आप क्या करेंगे। एंड लास्ट वन इज ट्रांजिशन फेज, जिसको हम रिस्टोरेशन फेज भी बोलते हैं, कि इसके अंदर हम रिकवरी करते हैं और नेक्स्ट फेज के लिए अपने आप को वापस हम रेडी करते हैं। सो अल्टीमेटली जो हमारा ध्येय है, हमारा जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कोच, एज ए टीचर, एज ए फिजिकल परफॉर्मेंस अगर आपको लेनी है किसी एथलीट की, या फिर आपको किसी
प्लेयर को अच्छा प्रिपेयर करना हो ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, तो काफी फैक्टर्स होते हैं जो इसको परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा आपके साथ में। फर्स्ट वन इज एथलीट हिमसेल्फ। जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन इज वेरी टफेस्ट जॉब, कि अगर आपको एक अच्छा एथलीट आपको मिल जाए जो डेडिकेटेड हो, तो आपके आधा काम हो जाता है कि हाँ वो इंटरनल मोटिवेटेड है, उसको आप एक्सटर्नल मोटिवेट नहीं करना, वो खुद से मोटिवेटेड है कि उसको स्पोर्ट्स में अच्छा करना है। तो ऐसे एथलीट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी नीड ए गुड कोच। जिस संस्था के अंदर हमें, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हम हैं, या जो हमारी एकेडमी है जो हम रन कर रहे हैं, जहाँ पर हम परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो वहाँ हमको अच्छे कोचेस अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो दूसरों को वास्ट नॉलेज और जिनकी स्किल्स अच्छी हों, तो वो अपने एथलीट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। देन वी नीड ए गुड कॉम्पिटिशन, कि हमको रेगुलर इंटरवल में कॉम्पिटिशन चाहिए। कॉम्पिटिशन एक ऐसी चीज है जिसमें प्लेयर्स का फियर निकलता है, डर निकलता है। अगर हम सभी को अगर स्टेज फियर होता है, कहीं को स्टेज फियर, कहीं को स्टेज फियर नहीं होता, तो स्टेज फियर किसको नहीं होता? जो रेगुलर इंटरवल्स पे स्टेज पे जाता है और डिलीवर देता है, बोलता रहता है, तो उसको इतना डर नहीं रहता। इसी तरीके से जैसे आप देखते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर भी अगर आपको रेगुलर इंटरवल में कॉम्पिटिशन मिलेंगे, तो आप एक्स्ट्रा एनवायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस को है उसको एनहांस करने की सोचते हैं। तो कॉम्पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इक्विपमेंट, जो भी मेजर इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो प्लेयर्स को चाहिए, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है वो उनको चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। देन फैसिलिटी एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। फैसिलिटी एक्सेस होगी तभी हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और एग्जांपल, इंडिया इज टू गुड इन हॉकी। 8 मेडल है इंडिया के हॉकी के अंदर, पहले बहुत थे, अब मेडल नहीं मिल रहे। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो फैसिलिटी एक्सेस है वो अब धीरे धीरे क्यूरेट होगी। ऐसा नहीं है फैसिलिटी एक्सेस अच्छा कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन कंपेयर टू एडवांस लेवल, उस लेवल पे जाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं हॉकी जो गेम था इज आवर नेशनल स्पोर्ट्स, और ये जो पहले चट पे खेला जाता था, मिट्टी में खेला जाता था, तो हमारे यहाँ ग्राउंड इजिली प्रिपेयर हो जाते थे, इसलिए हमारे प्लेयर हॉकी अच्छे से खेलते थे। बट लेटर ऑन जो FIH है उसने किया कि हॉकी की जो फील्ड है वो एस्ट्रोटर्फ में कन्वर्ट कर दी, ग्रीन एस्ट्रोटर्फ आया। उसको लाने में हमें 8 से 10 साल लग गए। जब हमारे पास ग्रीन एस्ट्रोटर्फ आया तब FIH ने क्या किया, उस ग्रीन एस्ट्रोटर्फ की जगह ब्लू एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसमें विजन चेंज हो जाता है, उसका जो मूवमेंट है प्ले का वो चेंज हो जाता है, बॉल की स्पीड चेंज हो जाती है। तो हमें अभी ब्लू एस्ट्रोटर्फ आपको इंडिया में देखेंगे 4 से 5 ब्लू एस्ट्रोटर्फ होंगे। तो ब्लू को पूरे स्टेट में, पूरे नेशन में लाने में 50 से 60 एस्ट्रोटर्फ होंगे, तभी बच्चे निकल पाएंगे। तो ब्लू लाने में हमें टाइम लग रहा है, और जैसे कुछ और ब्लू हमारे पास अच्छे से होगा तब कुछ और नया चेंजेस आ जाएगा। तो इमीडिएट फैसिलिटी एक्सेस हमें चाहिए, हमारे प्लेयर्स को चाहिए, तभी हम परफॉर्मेंस के अंदर अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा पाएंगे। वी नीड ए गुड बैकग्राउंड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, either from sport biomechanics, exercise physiology, sports training, either from anthropometry, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, जो परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, डाटा करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो सब लोग हमें चाहिए। वी नीड ए गुड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम, जो प्लेयर्स को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके कैलिबर के हिसाब से कौन सा स्पोर्ट्स उनके लिए बेस्ट रहेगा, वो सब उनको बता सके, ऐसी हमें एक टीम चाहिए। वी नीड ए गुड स्काउटिंग टीम। स्काउटिंग चाहिए कि प्ले के परफॉर्मेंस के जो भी आप परफॉर्म करते हैं तो उसके डेटा को गैदर करें, फिर उसको डेटा को इंटरप्रेट करें, उसके हिसाब से उसको प्रॉपर्ली फीडबैक दें और फिर इसमें वापस कोर्स में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लेके आए। वी नीड ए गुड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट जहाँ पर एक अच्छी ट्रेनिंग हो, एंड डेफिनेटली वी नीड ए गुड रिसर्च, कि टाइम टू टाइम हमारी रिसर्च होनी चाहिए और जो भी लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं वो हम अपने प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर सकें। अगर हम इन सब पे फोकस करेंगे, देन ओनली वी गेट द मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स। जितने भी वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, जितने भी ओलंपियंस हैं, वो सिर्फ अपने दम के ऊपर ओलंपिक चैंपियन नहीं बने, उन्हें ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने उनको असिस्ट किया, तब जाके प्रॉपर्ली सिस्टम बनाया, तब जाके उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल दिए। अगर ये सभी सिस्टम हमने अपने एथलीट्स को बराबर रेगुलर इंटरवल्स में देते रहेंगे, then I am very pretty sure कि हम नेशनली नहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी हम अच्छा कम्पीट कर पाएंगे। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एक्स
CM of Gujarat, Sri Narendra Modi ji, and our Honorable Vice Chancellor Sir, Rajat Rana Sir, to take the great initiative in terms of opening up of the Swarnim Gujarat Sports Ministry at 130 acre in near to Desar, जो कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन, ये सारे फैक्टर्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सभी फैक्टर्स को यहाँ पर रखा जाएगा ताकि परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट्स की वो डेवलप हो। गुजरात लेवल पे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स सिटी है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जहाँ पर अच्छे से अच्छे एथलीट निकल के आए, ना ही वो सिर्फ स्टेट लेवल पे खेले बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल को मीट करें और वहाँ वो चैंपियन। दिस इज कॉल्ड वन स्टॉप डेस्टिनेशन। And with this, I just conclude my session. If anybody have any question regarding the same, please you can ask. I will respond for that. So, any questions, anything from any participant side is most welcome. So, sir, instead of so we have Ankur Singh Saini sir, who is again one of the gem of Swarnim Gujarat Sports University has joined. I welcome Ankur Singh Saini sir. He is a very renowned and certified coach in swimming. Has done his NIS from Team Patiala and Netaji Subhash Institute of Sports. So, sir, it was a great session by Ravindra Singh Rajpurohit, sir. Sir, if you have anything to put it up and have a few questions for sir. Ravi sir has taken a very wonderful session on the technique development framework. सर अपनी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अपने पार्टिसिपेंट्स को बताया है कि जैसे अपने गुजरात में ये जो खेल महाकुंभ चलता है, ये स्ट्रक्चर कैसे हमारे एथलीट डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन अंकुर सर। बेसिकली जो खेल महाकुंभ है जिसको हम कहते हैं बेस ऑफ एक्सीलेंस, बेस ऑफ एक्सीलेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा है कि आप देखेंगे जब भी आपको एक अच्छा सैंपल चाहिए, रिसर्च में हम डिस्कस करते हैं, जब भी आपको एक अच्छा सैंपल चाहिए, वी नीड अ गुड पॉपुलेशन। आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतना ही अच्छा आपका सैंपल आएगा। तो पॉपुलेशन के लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेल महाकुंभ को इंट्रोड्यूस करके हम जो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स हैं उनको भी बाहर निकाल रहे हैं। दैट इज वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। मैं ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का इनिशिएटिव बहुत कम स्टेट ने लिया होगा, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, 2-3 स्टेट है जिन्होंने खेल महाकुंभ जैसा कॉम्पिटिशन वो स्टेट लेवल पे करवा। तो फॉर ग्रास रूट लेवल इज ओके, लेकिन उसके बाद जब अगर आप बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस की या बात करते हैं ट्रेन टू विन, ट्रेन टू कम्पीट, ट्रेन टू विन लेवल की, तो उसके लिए यूनिवर्सल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूएस है, चाहे चाइना है, इनके जो 80% मेडलिस्ट हैं दे कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, वो यूनिवर्सिटी लेवल से बच्चे आते हैं, 19 ईयर 20 ईयर 20 ईयर्स के चैंपियंस होते हैं। तो यूनिवर्सल सिस्टम को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को इस तरह के फ्रेमवर्क को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि यार स्कूल लेवल पर आप इन स्टेजेस को रन कीजिए, और जैसे आप कॉलेज में आते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल में आते हैं तब आपको रिमेनिंग जो 3 स्टेजेस हैं उनके वर्कआउट करना है, और उसी के लेवल पे हमें करना है। तो महाकुंभ इज वेरी ग्रेट। यहाँ पर आपको अच्छा नीड ए गुड यूनिवर्सिटी सिस्टम फॉर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। Right, sir. बिल्कुल rightly said. Sir, I think that will be most relevant answer by Ravi sir to all the participants. Hello. Yes, Chairman. Yes, Christian Bhatt. Myself, Dr. Bhavesh Bhatt. Okay. Sir, Yes. I have gone through your presentation. Where you placed on physical literacy ratio. It was very interesting for me, and I just want to know the indicators of the physical literacy ratio, and do we have any kind of data but the state data of physical literacy ratio? Actually, voice has been making in between, so I'm not. Yes. Sir, he has talked about the physical literacy ratio. That is, if I am not wrong, respected but sir, that do we have any specific data or do we have any specific number where we stand in terms of physical literacy?
So, sir, what I prefer and what I think of as the physical literacy can be, at a one end seen from the participation of individuals into a various sports activities and various sports competitions. So, in last few years, after the various competitions and various sports infrastructure which has been coming up in the state, so physical literacy, sports participation, and awareness towards the getting into the sports is increased a lot. It's difficult to give the actual specific number. If at all I am wrong, please I request Ravindra sir or Ankur sir to correct me. Even we have our associate professor also connected. He may also lighten up the subject. I just add in your statement that physical literacy is very unique concept in India nowadays. हम जो जानते हैं डिफरेंट होते हैं फिजिकल एजुकेशन. लाइक फिजिकल मींस आप देखते हैं फिजिकल एजुकेशन जस्ट लाइक टीचिंग थ्योरेटिकल पार्ट. लेकिन फिजिकल लिटरेसी फ्रॉम बॉर्न टिल डेथ तक हमारे साथ चलता है कि जो भी हमारे एक्टिविटीज मूवमेंट्स हैं कैसे हमसे कर रहा है, कैसे हमें अपने जो शारीरिक चीजें मूवमेंट्स उससे जागरूक है. इसलिए का कोई डेटा अभी तक हमने निकाला नहीं कि फिजिकल लिटरेट कितने हैं. तो मोस्टली जो फिजिकल एजुकेशन में जो एसोसिएट हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, जो स्पोर्ट जैसे अंकुर सर ने कहा खेल महाकुंभ, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं सो वी जस्ट गेट द डेटा ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन इट. हाउ मेनी आर फिजिकल लिटरेट दैट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा राइट नाउ. स्कूल सिस्टम में जो हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर हमने स्पोर्ट्स को या फिजिकल को मैंडेटरी किया है, तो उससे हम जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में एजुकेशन सिस्टम गेन कर रहे हैं. बट व्हाट इज राइट फिजिकल लिटरेसी मींस कि आप फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी उसको राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप उन बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको लिटरेट करते हैं उसके बारे में प्रॉपरली. जो भी आपकी स्कूल्स हैं या फिर जो कॉलेजेस हैं या जो होम केयर हैं या डे केयर है उसके अंदर प्रॉपरली एक प्लान हो कि आपके बेसिक मूवमेंट्स क्या होने चाहिए, आपने फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या होना चाहिए, फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आप कंपटीशन में पार्ट करते हैं तब आपको क्या करना चाहिए और उसके बाद उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. एंड लेटर और सूनर वंस यू अचीव ऑल द टाइटल्स और आप एक एज के बाद आप आगे जाते हैं तो उसके बाद भी कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करती रहनी चाहिए जिससे कि आप होंगे. अभी रिसेंटली हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं. इवन आवर प्राइम मिनिस्टर एक ग्रेट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ योग दिवस जो मना रहे हैं 21 जून को, तो वो योग दिवस सिर्फ एक दिन नहीं सभी दिन होना चाहिए. तो वी हैव टू फॉलो द योगिक प्रोटोकॉल्स. तो योग प्रोटोकॉल जब हमारा फॉलो होगा तो आप देखेंगे फिजिकल लिटरेसी ऑटोमेटिकली हमारी ग्रो हो जाएगी. अभी सिर्फ हमने योग को पकड़ा है, इसी तरीके से हम बाकी फिजिकल एक्टिविटीज को भी अडॉप्ट करेंगे, एक्सरसाइज को अडॉप्ट करेंगे. कि जैसे कहते हैं फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, बहुत अच्छा ही कोट किया है. तो ये क्या है, पार्ट ऑफ फिजिकल लिटरेसी. अब उसको कैसे परफॉर्म करना है, क्या सिस्टम होगा, कैसा वार्म अप कैसे करना है, क्या क्या एक्टिविटी करनी, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे कि आपको लगेगा आपको फिटनेस इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका यूरिन कैसा हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, आपकी हार्ट रेट कितनी जा रही है. तो ये सब पैरामीटर्स आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी. तो ऐसा हमें एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ेगा. तो वो फ्रेमवर्क डिजाइन होता है और उसके बाद लोग उसको फॉलो करते हैं. And definitely we get good result, we put good number of data in terms of physical fitness. आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर एक सोसाइटी के अंदर एक फिटनेस सेंटर है. मतलब जैसे हमारे यहाँ शॉप्स होती है वैसे वहाँ फिटनेस सेंटर्स है. तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो पब्लिक है उसमें आप देखेंगे 60-70% रेशियो है. दे आर वेरी गुड फिजिकल लिटरेट, दे नो वेरी अबाउट देयर बॉडी, जो अपनी बॉडी को कैसे रखना है. बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर द डॉक्टर्स. आप डॉक्टर से पहले हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या डिसफंक्शन हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करें. तो अभी ऐसा कोई डेटा जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसा कोई डेटा फिजिकल लिटरेसी की तरफ नहीं है. बट यस, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे देन डेफिनेटली वी गेट गुड नंबर ऑफ डेटा. It means there is scope of research. Yeah, that's part of research. We can do research on this part. यदि आप स्पोर्ट्स करते हैं इंडिया में तो वो भी हमें अपने फिगर मिलेगा. वो तब मिलेगा जैसे खेल महाकुंभ गुजरात में है तो हमें पता चलता है कि हर साल कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं. हरियाणा है, गुजरात है, ये 2-3 स्टेट है, पंजाब है, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज होती है. अगर ये एक्टिविटीज मास लेवल पे हो तो हमें जरूर मिल जाएगा. One more question is there, sir, if time is permit. Yes, please. Yeah, please. But we will quickly wrap up the session.
So one or two few questions and we'll be wrapping up the sessions. I would request you to please go ahead. Okay, sir. Sir, what is the role of innovative indoor games during this pandemic? Role of innovative indoor games. Indoor games to release the stress during this pandemic period. Yeah, definitely we need some sort of physical activities in this pandemic situation. और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे स्पोर्ट्स का तो अभी एकदम बूम आने वाला है, क्योंकि स्पोर्ट्स का पीरियड बूम आएगा. रीजन वेयर एवरीबॉडी नो कि अगर फिट रहेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे. तो अभी इस सिचुएशन में आप बाहर नहीं सकते, तो जो इंडोर एक्टिविटीज है जिसके अंदर मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा योगा एक्सरसाइज. योगा एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए. थोड़ी बहुत इंटेंसिव एक्टिविटीज है 30 मिनट्स की, वो आप परफॉर्म कीजिए. लाइक जॉगिंग हो गया, ऑन द स्पॉट रनिंग हो गया, कुछ फ्री एंड एक्सरसाइज या फ्री वेट एक्सरसाइज है, छोटे मोटे डंबल मार्बल या टेराबैंड लेके आप परफॉर्म कर सकते हैं. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके स्ट्रेस को रिलीज करेगा ही करेगा, और आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है, आपकी जो मसल्स हैं, उनको भी वो डेवलप करेगा. बिकॉज देयर इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है. स्पोर्ट्स सिंगिंग के अंदर हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मींस कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी जो मसल है वो स्ट्रेंथन होती है, आपकी हाइपरट्रॉफी होती है, आपकी मसल्स से आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में रहती है. ऑन द अदर साइड, इफ यू स्टॉप ट्रेनिंग तो आपकी मसल्स में एट्रोफी आने लगती है, आपकी जो फंक्शन है बॉडी का प्रॉपरली नहीं रह पाता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे आपको आधा घंटा मिले, चाहे 45 मिनट मिले, जितना टाइम मिले, अगर आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे, फिट रहे और आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें. I would like to add something in Ravi sir also. जैसा कि आपने पूछा कि सर इंडोर जो है, इंडोर गेम फिजिकल एक्टिविटी कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, तो वेरी सिंपल रिसर्च जो मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च की बात चल रही है, तो कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेशन है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने की. वो आप इंडोर करें या आउटडोर करें, तो दैट डजंट मैटर्स कि जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल तो कम होना ही होना है. तो नाउ द पैंडेमिक सिचुएशन इज देयर, तो आप आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते तो इंडोर एक्टिविटी करते हैं. तो इंडोर एक्टिविटी के लिए हमारा सजेशन ये है कि WHO की गाइडलाइंस हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि अगर आप 75 मिनट्स अ वीक अगर कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, और जिसमें से 15 मिनट अगर वीक में आपकी स्ट्रेनियस एक्टिविटी या कोई एग्जॉस्टिव एक्टिविटी रहती है, तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को और अपने फिजिकल फिटनेस लेवल को कम कर सकते हैं. और ये एक्टिविटी, सारी की सारी एक्टिविटी इंडोर हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक सिंपल डंबल ले सकते हैं, हम बॉडी वेट कर सकते हैं. आजकल पिलाटेस है ना, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स भी है, जो कि ऑन इन हाउस ट्रेनिंग है, वो आप कर सकते हैं. So we have summed up the session. Or anything to be discussed more? Anyone has any question? So I request now Poo Singh Saini sir to please propose a thanks to Ravindra Singh Rajput sir. So on behalf of the university and on behalf of both the departments, I would like to thank our expert session, Mr. Ravindra Singh Rajput sir, for taking such a wonderful session and enlighten all the participants present over here. I hope कि जो भी आपने आज जो चीजें डिस्कस की हैं, पार्टिसिपेंट्स कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर लेके जाएंगे और अपने आने वाले ट्रेनिंग करियर में और जो भी जहाँ पे भी अटैच हैं कहीं भी स्पोर्ट्स से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. So once again I would like to thank you very much sir. Thank you sir. I also thank all the participants, those who have joined us for this and stay tuned for the tomorrow's session. We'll have 2 sessions tomorrow. We'll start at 2 p.m. sharp. So everyone, so be with us for tomorrow, right? And thank you so much for joining today. Over to COE sir. So we are closing up for the day, sir. We'll be meeting tomorrow. Tomorrow at 2 o'clock, right? Thank you all for your active participation, and I'm closing the session. Thank you.